that we have the recording of session, because I know it's going to be very, very important session. So recording should be there, then only you all can even refer it in future. So you are going to learn lot of new things, many things from Vikas. So Vikas, are you there? Can you switch on your camera? Yes. So I'm here. Please. Yeah, I'm here. Hi Vikas. Very good evening. How are you? Good evening, sir. How are you? I'm good. Absolutely good. And I'm too excited for this session. Amazing. And I'm started, and as I told you, as I told everyone, that I have in last 1.5 months, I have got so many messages and call ki there should be a session with Vikas. So I thought, why not I should host that session because with normally Vikas host everyone. So when it is Vikas is going to teach something, why not I should host? So that's why I'm here, and I'm really enjoying to be live after so long. After very long time, I'm live, and very happy to be here. And thanks for joining. Thanks for accepting to share your secrets. Not many people do. And that's the beauty of online business, or that's the beauty of LeadSarc, I will say, that all the top leaders are always ready to teach people, always ready to share their secrets, always ready to share how they work. And that makes me really proud of LeadSarc, because that's the kind of team we have. Absolutely. Really very happy with that. Why my video camera is getting, Yeah, not visible. maybe some USB problem. Yeah. Again off. Okay, so even if my camera goes off, I know today people have come to see you, not me. Okay, so your camera should not get off. That is the main thing. And I want to tell everyone कि अगर किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से अगर सेशन कट हो जाता है, तो प्लीज डू नॉट लीव द सेशन. we will reconnect again. Okay, so आप जैसे हैं वैसे ही रहिएगा. And you people, please do not disconnect. Please do not leave session, because this is going to be very, very important for all of you. क्योंकि बहुत दिनों से ये long time waiting था, बीच में मैं travel भी कर रहा था, जिसकी वजह से ये delay हो गया. So this is going to be very, very important session where you are going to learn all the secrets, right? That how Vikas has made more than 1 million, 10 lakh rupees in 1 month. That's correct, right? That's the figure, right? Yeah. Like it's almost 14 lakh. Almost 14 lakhs. So telling 1 million is actually underestimating the figure. Okay. So 14 lakhs in 1 month. This is not a joke. This is not that we are just trying to advertise something. This is not the sales webinar. This is all our internal team watching this, and those all you people who have already purchased it. So we don't need to give you any kind of false commitment or something. Here is the live person, and he's going to teach you. Now, it is important for you that how you learn from that process, whatever he is going to share, how much you can implement that, right? Those things are very important. Okay. So ज्ञान मिल रहा है, बस हर तरफ से ज्ञान मिल रहा है, बस लेते रहो. That's what LeadSarc platform is. So I do not want to waste much time, because recording is on, and don't want the session to go boring. So before I start session, Vikas, so my first question to you, just to highlight this session, so that people are really serious, get serious on this session, and they stick long. Okay, just one figure I want to know, your so far in LeadSarc, what was the highest in 1 week and highest in 1 month so far? Like 1 month you said almost 14 lakh. In a week, in a week, what was the highest ever? मतलब earning एक बार का payout, single payout. It's 4.5. Like it's, to be precise, 4.49 something. मतलब 4.5 लाख की पकड़ लीजिए. 4.5 लाख के आसपास. That's really amazing. 4.5 लाख एक हफ्ते में, मतलब बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके 1 साल का उनका कमाई होता है कि नहीं? बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, 4.5 लाख 1 साल का पैकेज होता है. Or we have a live person here who has earned 4.5 lakhs in 1 week. अब एक चीज और बता दे before we proceed further. ऐसा नहीं कि देखिए Vikas has done, now everybody will see the result that someone has earned 4.5 lakhs. But Vikas is in LeadSarc for how many months, Vikas? See, I've been there almost more than two years. Okay.
So But almost 2 years, right? You're here. The point I'm trying to make here, that you can earn 2 lakhs, 3 lakhs in a week also. Anybody can do that. I'm not saying that only Vikas can do, anybody can do. But it also requires a lot of hard work and learning. It is not in the very first week, not in the very first month, he started earning this much money. So you people need to stick. You people need to work hard. You people need to focus on learning. You people need always need to improve yourself always. And that should be your mindset. So if you are improving a lot, if you are focused on improvement, you can also reach to this level. Okay, right? So बट सर अभी पता है सर बहुत आसान हो गया, लाइक हम इसको इंग्लिश हिंदी मिक्स रखते हैं बिकॉज आप मोस्ट ऑफ द इंग्लिश ही बोल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी कंफर्टेबल ज्यादा है, सो वी अच्छा विल अच्छा, कीप इट हाँ मिक्स, ओके वी विल कीप इट मिक्स. हाँ, डेफिनेटली सो डेफिनेटली। मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो लोग आप अभी जिन लोग को बता रहे हैं कि मेरा 2 साल हो गया, एंड आई टेल यू ऑनेस्टली लाइक अभी चीजें बहुत आसान हो गई हैं. आसान डेफिनेटली। इसलिए हो गई है क्योंकि आपके पास रोड मैप है. हमारे टाइम पता है जब आपको दिखता है कि एक बंदा 4 लाख कर सकता है, 3 लाख कर सकता है, तो फिर आपके अंदर वो बिलीव आता है कि कर सकते हैं. जैसे सचिन का डेफिनेटली, था, जब ना जाने कितने साल से क्रिकेट चल रहा था, किसी ने डबल सेंचुरी मारा नहीं डबल था. सेंचुरी वनडे में नहीं मारा था। सचिन मारने के बाद क्योंकि कितने सारे मार चुके हैं। अभी 2 दिन के बच्चे आके मार दे रहे हैं. आप देखिए करेक्ट। शुभमन गिल मार दिया, फिर वो आपका रोहित शर्मा लेफ्ट 2 बार हैंडर है. किया, वीरेंद्र सहवाग किया, बहुत सारे लोग इंडिया के प्लेयर ही कितने सारे कर चुके हैं। एग्जैक्टली वो किशन समथिंग किशन नाम है लेफ्ट ईशान हैंडर, उसने ईशान किशन. किशन, तो हाँ। एक बिलीव आता है. तो आज के डेट में आपके पास रोड मैप है. जब मैंने स्टार्ट करा था मुझे आज भी याद है वो टाइम. उस समय वीक की 26,000 या 30,000 आप कर लेते हो ना, बहुत बड़ा अमाउंट था कि एक हफ्ते का 30,000 30,000. टॉप परफॉर्मर। टॉप परफॉर्मर 30,000, और उस समय 30,000 करना बहुत बड़ी बात है कि हमने 30,000 की, क्योंकि बिलीव ही नहीं था, उतना माइंडसेट ही नहीं था. इट वाज लाइक कि लाखों तो लाख बहुत बड़ी बात थी. आज जाके हमारे लिए लाख अपने छोटा आप हुआ को है. लगता था कि अगर मैं 30,000 शो कर दूं तो कहीं कोई बोलेगा कि स्कैम है कि नहीं। अगर एब्सोल्युटली 50,000 मैं शो कर दूं तो किसी को लगेगा कि स्कैम है। अपने आप को लगता था, तो वो बिलीव ही नहीं था पहले। और अभी जो एब्सोल्युटली. लास्ट वीक का जो पे आउट हुआ है, आई थिंक टॉप 5 और टॉप 4 आर अबव 1 लाख। आई नो एवरीबॉडी इज अबव, आई थिंक टॉप 10 top 10 इज is 1 above लाख 1 अब. lakh and top 4 is above 2 lakhs. हम्म. So that is the thing. Yeah, so it's all about belief, as you said. Absolutely. एब्सोल्युटली. हाँ, तो स्टार्ट करते हैं मोर ऑन हाउ यू वर्क. तो सबसे पहले बहुत लोग जान, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चंस है ना, मैं सच में बता रहा हूँ कि मुझे लोग कॉल किए हैं, ये अभी नहीं, ये सेशन नहीं, पहले मतलब लास्ट 1 मंथ 1.5 मंथ में, कि विकास पता नहीं क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है। हमले भाई मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, नहीं तो हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो ये सब तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन पहले मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि ये जो पूरा आप जो कर रहे हैं, ये आप सिंगल हैंडेडली अपने से कर रहे हैं और यू हैव सम टीम? पीपल वांट टू नो, नेशन वांट्स ओके. टू नो। ओके, नेशन वांट्स टू नो. सो आई एम डूइंग इट ऑल अलोन. ठीक है, मैंने अपने से खुद से स्टार्ट करा, सब चीज अकेले ही कर रहा था, बट बीच में बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था, क्योंकि बिलीव मतलब मैंने बहुत बड़ा गोल ले लिया था. अब जब गोल लेते हो तो चीजें आपके फेवर में होने लगती है धीरे धीरे. ऑफ कोर्स, तो हाँ। अचानक से ना बहुत ज्यादा लोड हो गया था. सो बहुत लोड आ गया था. उस वक्त मैंने हेल्प लिया था अपने कजन का. तो आई थिंक वो टाइम वाज लकी, लाइक टाइम वाज फेवरेबल टू मी. उस टाइम क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ था, तो ही वाज अच्छा। अवेलेबल. So he was not working full day, but उसका खुद का भी he used to do dance. Okay, डांस एकेडमी है. तो जब भी टाइम मिलता, सबसे अच्छी बात डांस एकेडमी मेरे घर के नीचे ही है, जब भी टाइम मिलता मैं कजन को ऊपर बुला लेता, और रात में मैं उसको होल्ड करके रखता कि आज तो इधर ही सोएगा, मेरा हेल्प कर. तो ही हेल्प मी लाइक 2 वीक्स अराउंड. उसके बाद मैं भी 2 अलोन वीक्स, नहीं बट करता ऐसे हूँ. नॉर्मली हाँ. आप एवरीथिंग, अभी जो पूरा लीड्स मैनेजमेंट सब कुछ सिंगल हैंडेडली करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास टीम होता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, मैसेज रिस्पॉन्ड करने के लिए स्टार्टिंग में, तो इसलिए हम मैं पूछा. सो ये सब 90% 99 ऑटोमेशन सब ऑटोमेशन कर दिया. पहले चीजें ऑटोमेशन पे जाने से डर, मतलब होता क्या है ना, जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं यार, कुछ चीज कुछ भी नया करें. आज हम इस लेवल में पहुंच चुके हैं, आज के डेट में भी कुछ नया करने के बाद 2 मिनट सोचते हैं यार, ठीक है ना, चल तो रहा है. तो वो जो ऑटोमेशन में जाने से पहले मुझे बहुत दिन से लगा था ऑटोमेशन करना है, बट पीछे यार नहीं, चल तो रहा है. बट जब प्रेशर आया, जब मजबूरी आ गई कि अब जाना ही ऑटोमेशन पे, तब मैंने जो नंबर वंबर सेव करने थे सब ऑटोमेट कर दिया. इंस्टाग्राम भी ऑटोमेट कर दिया. अब इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे मैसेज करते हो, हाई करो, हेलो करो, ऑटोमेटिकली आपको एक ड्राफ्ट चला जाएगा जहां मेरा नंबर मेंशन है. आप ऑटोमेटिकली मेरे व्हाट्सएप पर आओगे. व्हाट्सएप पर आने के बाद आपको आपका नंबर भी ऑटोमेटिक मेरा सेव हो जाएगा. बस जो रिप्लाई है वो मैनुअली करता हूँ मैं. बट फर्स्ट मैसेज में व्हाट्सएप में भी आने के बाद फर्स्ट मैसेज चला जाता होगा वीडियो देखने के लिए? नहीं, फर्स्ट मैसेज मैं इसलिए नहीं भेजता क्योंकि ऑटोमेशन अगर व्हाट्सएप पे करेंगे तो वो सिर्फ डायरेक्ट आपका टेक्स्ट जाता है, उसमें आपकी ऑडियो नहीं जाती है. तो लिंक नहीं जनरली मैं जाता। हाँ, मैं आपको आप जनरली एक ड्राफ्ट भेजता हूँ और साथ ही साथ एक ऑडियो भेजता हूँ, क्योंकि ऑडियो से क्या होता है ना, जो भी पर्सन आता है वो ज्यादा अच्छा लिंक कर पाता है कि ऑफ एक कोर्स। ऑडियो आई है, उसने 1 मिनट का ऑडियो सुना तो वहाँ पे कनेक्ट कर पाता है, और मैं उस ऑडियो में ऐसे बात बोल रहा हूँ कि बंदा कनेक्ट कर जाता है कि हाँ बंदा जेन्युइन है, तो फिर हम ये वीडियो देखेंगे. नहीं तो ओके, लोगों को क्या वीडियो आया इग्नोर कर देते हैं.
सो दैट्स हाँ। वाई मैं उसमें ऑटोमेशन स्विच नहीं करा। कर देता अगर उसमें ऑडियो का ऑप्शन अवेलेबल रहता तो मैं उसको भी ऑटोमेट कर देता, बट जस्ट बिकॉज वहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन नहीं है इसलिए फिर मैं मैनुअली करता हूँ। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ओके, ऑलराइट। So the answer is कि विकास is doing everything on his own, but he works on automation. तो automation is the only way, जितना ज्यादा अपने प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर पाएंगे उतना ज्यादा स्केल अप कर पाएंगे, राइट? ऐसा जरूरी नहीं कि अभी आपको, जो लोग नए हैं उनको एवरीडे बहुत सारा चीज ऑटोमेट करना है, मेन चीज आपको सीखना है, बट स्केल अप करने के लिए ऑटोमेशन इज द ओनली वे। ओके, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जितने बिगनर्स हैं गाइस आपको भी ऑटोमेशन में फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि जब जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा आप ऑटोमेशन में जाकर करोगे क्या, आपको समझ नहीं आएगा चीजें। तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल करके बेस स्ट्रांग कर लो, उसके बाद ऑटोमेशन में जाओ तो काफी हेल्प होगा आपको। ग्रेट, गुड। और इंस्टाग्राम पे तो आएंगे, बट इंस्टाग्राम से पहले ये भी पूछना चाहते हैं कि व्हाट आर द अदर प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के अलावा जो आप लीड जनरेशन के लिए यूज करते हैं? ओके, सो करेंटली फेसबुक चल रहा है और 95% मेरा इंस्टाग्राम है। फेसबुक बस चल रहा है साइड में, दोनों को मैं लेके चल रहा था। बट देखिए होता क्या है ना, मैं ये नहीं किसी को सजेस्ट करूंगा कि आप इंस्टाग्राम यूज करो, आप 2-3 प्लेटफॉर्म लेकर चलो। डाउन द लाइन ना आपको खुद पता चलेगा कौन सा प्लेटफॉर्म आपको ज्यादा रिजल्ट दे रहा है। किसी के लिए लिंक्डइन ज्यादा अच्छा वर्क करता है, तो आप वर्क करते रहो सारे प्लेटफॉर्म पर, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कहाँ से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज्यादा रिजल्ट आ रहा है आज के डेट में। पहले जब मैंने स्टार्ट करा था उस समय फेसबुक से रिजल्ट आती थी, मैक्सिमम रिजल्ट फेसबुक से आती थी। बट आज के डेट में इंस्टाग्राम, तो मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो अच्छा, इंस्टाग्राम पे एड चलती है, एड से लीड जनरेट होती है। ओके, मतलब एट द मोमेंट आपका कितना एड लाइव होगा अभी? मेरा अभी करेंटली एक ही एड लाइव है। तो नॉर्मली एक एड ही रहता है नॉर्मली, कभी कभी आप मल्टीपल नॉर्मली एड्स भी करते दो तीन ऐड रहता है, बट मेरा जो नॉर्मल बजट रहता है वो मान लीजिए 700-800 ऐसे रहता है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं पूछने वाला था। जो टोटल 700-800 वीकली बजट रखते हैं आप या डेली का बजट रखते हैं? डेली का बजट आप डेली का। 1000 मान लीजिए, 1000 डेली का बजट। तो भाई अगर कुछ पाना है, क्वालिटी लीड्स पे पाना है, तो खर्चा तो करना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, राइट? हाँ, तो इसमें भी एक चीज है, मैं इसमें भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर कि एड पे पैसे लगाने से पहले ना मैं बहुत सोचता था कि एड पे पहले मैंने लगभग 20 लाख तो ऑर्गेनिक ही किया, बिल्कुल एड नहीं करा उसमें। करेक्ट, सो करेक्ट। हाँ, मैं ऑर्गेनिक ही कर रहा था, लेकिन एड में जाने के पहले भी रिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, पैसे को लगाए, फ्री में आ रहे हैं पैसे। बट एक चीज माइंडसेट में समझ में आया कि मैं बिना पैसे लगाए मान लीजिए 10,000 कमा रहा हूँ, और अगर मैं 2,000 अपने पॉकेट से लगा रहा हूँ और मुझे 20,000 और एक्स्ट्रा आ रहा है, मैं 30,000 कमा रहा हूँ, तो यार 2,000 के चक्कर में मेरे को 28,000 का प्रॉफिट हो जा रहा है, मान लीजिए 18,000 का प्रॉफिट हो जा रहा है। एक्स्ट्रा या तो ये चीज मेरे दिमाग में आई, ये चीज बहुत टाइम लगा मेरे को बिलीव करने में या फिर इसको समझने में, जो एक्सेप्ट कि करने में। बिजनेसमैन समझते हैं। हाँ, हम्म। तो ये मैं सोचा अगर मैं 1,000 1,500 लगा रहा हूँ अपने ऐड में, ठीक है, और मेरे को रिजल्ट भी आ रहा है, मैं 15-20 हजार एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, तो क्या खराबी है इसमें। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा, लेकिन जो लोग बिगिनर्स है या जो लोग अभी स्टार्ट है, आप एड चला रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक चीज और क्या है कि एड से आपको लीड्स आते हैं, ऑफ कोर्स ज्यादा नंबर ऑफ लीड्स आएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको सेल्स करना सीखना होगा। आप 1,000 रुपया का, आप 2,000 रुपया डेली का लगा दो, आपको लीड्स तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन अगर आप सेल्स करना नहीं जानते हैं तो सेल्स करना मुश्किल है। जैसे विकास ने बोला कि 20 lakhs ही अर्न थ्रू ऑर्गेनिक, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 20 lakhs का वेट करना है, बट एटलीस्ट 1-1.5 लाख, एटलीस्ट 50,000 आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि जब मैं लीड्स लेके आऊंगा तो मैं उसको सेल्स कर सकता हूँ। तो वो 50,000, 1 लाख का आपके पास एटलीस्ट, मतलब कि सेल्स करना आना चाहिए। नंबर, देयर इज नो एब्सोल्युटली नंबर, 50,000, 1 लाख ऐसा कोई नंबर नहीं है। बोलने का मतलब है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं सेल्स कर सकता हूँ, तब जाके पैसा लगाई। नहीं तो आप ऑलरेडी फिर सोचेंगे कि अरे मैं पहले ही कोर्स खरीद चुका हूँ, फिर एड भी चलाना है, फिर वहां से भी पैसा लगाना है, तो फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा। तो पहले आप अपने एब्सोल्युटली अंदर, एब्सोल्युटली पहले आप कोर्सेज को देखिए, सीखिए, वहां वहां से सेल्स कीजिए, पहले ऑर्गेनिक लीड जनरेट कीजिए, और फिर जब वहां से आपको जब कॉन्फिडेंस आता है, देन यू गो फॉर एड्स। एब्सोल्युटली। देखो अपने पॉकेट से पैसे किसी को नहीं लगाने, हमने भी कभी अपने पॉकेट से पैसे दैट्स नहीं व्हाट। लगाए, हाँ। आपको भी नहीं लगाना है। और जैसे अयाज सर ने बताया अभी 50,000 कम से कम, मैं भी यही कहता हूँ कम से कम 50-60 हजार आपके हो जाएं, क्योंकि इन 50-60 हजार में ना आप सीख जाओगे, प्रोसेस सीख जाओगे, और करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगी। मान लीजिए आप, मैं 1,000 का एड रन कर रहा हूँ, मेरे पास 1,000 से मान लीजिए 400 लीड आ रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपके पास 100 लीड आए। पता है क्यों? क्योंकि आपकी प्रोफाइल उतनी अच्छी ऑप्टिमाइज नहीं होगी जितनी मेरी ऑप्टिमाइज है। तो जब तक आप 50,000 अर्न करोगे जीरो से लेके 50,000, तब तक आपकी प्रोफाइल भी काफी, मान लीजिए उसमें 1 महीना लगा, 2 महीना लगा, आपकी प्रोफाइल भी काफी ऑप्टिमाइज हो चुकी होगी, ताकि जो भी लीड उस पर लैंड करते हैं ना वो आप पे ट्रस्ट करेगी। सो ये मत सोचो कि यार एड पैसे लगाने, बिल्कुल नहीं। बिगनिंग आपको
स्मॉल ही करना है, स्लोली ही करना है, ठीक है। स्लो एंड स्टेडी कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। तो आपको स्लो ही चलना है। डाउन द लाइन आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, अब मैंने इतना कमा लिया, मुझे अब स्केल करने की जरूरत है। ये एड वैड ये सारी चीजें स्केल करने की बात होती है कि आपको स्केल करना, आपको बड़ा खेलना है। करेक्ट, सुपर। तो एड जो है आपका वो इंस्टाग्राम में चलता है, इंस्टाग्राम पे चलता है, बिल्कुल। और अपार्ट फ्रॉम एड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऐसा कुछ कोलैबोरेट करते हैं आप दूसरे आ, इन्फ्लुएंसर से? नहीं नहीं, फिलहाल तो मैं ऐसा कुछ करा नहीं। मैं अपनी कंटेंट डालता हूँ, कंटेंट वायरल जाती है कंटेंट से, और कंटेंट पे वहां से भी काफी आ जाते हैं, और फिर एड भी चलती है, दोनों। किस टाइप का कंटेंट आपका रहता है फोकस, जो आप जो ऑर्गेनिक कंटेंट जो डालते हैं या रील्स डालते हैं, क्या ऑर्गेनिक वही फोकस? आपकी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो गाइस, लाइक कुछ भी, जैसे कुछ अर्निंग हुई या फिर कुछ ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी। पहले हम क्या करते थे ना, कुछ भी म्यूजिक के साथ अपनी कुछ मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट है, वहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, और फिर डैशबोर्ड डाल दिए। उससे भी रिजल्ट आती थी एक टाइम पर, अभी भी आती है, बट अभी थोड़ा ज्यादा रिजल्ट आ रहा है अगर आप खुद से बोल के डाल रहे हो। अगर आप खुद से मतलब बात कर रहे हो कि हे स्टॉप, दिस इज हाउ आई मेड दिस मच मनी फ्रॉम जस्ट बाय यूजिंग स्मार्टफोन। लोग ओके, ज्यादा तो आप कनेक्ट अगर करते हैं। कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम्म, तो इस तरह मैं जो बना रहा हूँ, उसमें मेरी एक रील भी वायरल गई। और ये सब चीज है ना, कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन से ही होता है। मैंने एक बिलीव लिया था, मुझे खुद, मैं आपको बताता हूँ बिगनिंग से ना कैसे जर्नी स्टार्ट हुई। आपको खुद पता है कि मैंने लगभग 18 लाख तक मैंने करा था अर्न। 18 लाख उसके बाद तक, आप उसके ब्रेक ले मैंने लिए लगभग थे। 6-7 महीना मेरा पॉज था, बिकॉज मेरे लाइफ में और भी मतलब कुछ प्रायोरिटीज थे, दूसरे दूसरे प्रायोरिटीज थे, फिर मेडिकल इशू भी थी। तो मैंने पॉज लिया, फिर मैं वेकेशन पे भी गया था। तो पॉज लेके मैंने जनवरी से क्या, फेब से स्टार्ट करा। तब मेरी अर्निंग थी 18 लाख रुपए। मैं आपको दिखा दूं, इधर मैंने लिख के रखा हुआ है सब। एलपीएल स्टार्ट होने से पहले ना? हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly. उस समय मेरी अर्निंग थी 18,49,000, मतलब 18.5 लाख। अगर आप यहाँ देख सकते हो, 18.5 लाख। ये पेपर मेरे बोर्ड पे थी। अब तो मैंने इसको क्वालिफाई कर लिया है, मतलब डन कर लिया है, तो मैं इसको उतार के नया टारगेट लगाया हूँ अभी यहाँ पे। सो ये 18.5 लाख था, और मैंने टारगेट लिया था 35 लाख का। ठीक है, मैंने कितना टारगेट लिया कितना 3 महीने में? या 3 महीने में मैंने टारगेट लिया 35 लाख का, जो मुझे एक साल में लगभग मैंने 18 लाख कमाया। एक साल से ज्यादा ही, 14 महीना, एंड एक साल अनदर कुछ महीने में। 17 lakhs you will earn, अनदर हाँ, 17 lakhs, राइट? इन मतलब 3 मंथ्स। 35 लाख अर्निंग करने का नहीं लिया था टारगेट उन्होंने। उन्होंने टारगेट लिया था 17 lakhs, और टोटल अर्निंग 35 लाख तक पहुंचाने का। एग्जैक्टली करेक्ट। हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, थैंक यू। सो वही था, जो जो चीज मैंने लगभग 13-14 महीने में किया, मुझे वो 3 महीने में करना है एग्जैक्टली exactly. तो जब मैंने टारगेट तो ले लिया, और उस समय मेरा जस्ट मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था, मैंने कुछ हाथों मारा, मेरा इंस्टाग्राम बैन हो गया। मेरा इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत दिन बाद मैंने पोस्ट डाला, रिस्ट्रिक्ट हो गया इंस्टाग्राम। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लिटरली रोने वाला फेस हो गया था कि यार, अब मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ, इतनी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम बैन हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। फिर मैंने एक प्लान करा, मैंने खुद से बात करी, यार विकास, तू भी जीरो पे नहीं है। मैंने अपना तुम्हें बोला, तू जीरो पे नहीं है। ऑफ तो कोर्स। प्रॉब्लम जितने सारे आ चुके हैं तेरे पास, 18 लाख डैशबोर्ड में है, तेरे पास नॉलेज है, बात करना आता है, सब कुछ आता है। प्लेटफॉर्म में लगभग 12,000 फॉलोअर्स थे। इंस्टाग्राम बैन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो पे नहीं है। मतलब बहुत, ये बोलना आसान है, बट खुद को जब बिलीव कराना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऑफ तो मैंने वो कोर्स। खुद को बिलीव कराया। फिर मैंने एक बोला कि चल, जितनी प्रॉब्लम्स आए आने दो। मैंने एक नया इंस्टाग्राम बनाया, नया इंस्टाग्राम बना के उस पर वर्क करना स्टार्ट करा, साथ साथ इस पे भी वर्क चल रही थी। तभी आउट ऑफ द ब्लू क्या हुआ, मैं सो के सुबह उठा, मेरा इंस्टाग्राम मैं रोज चेक करता था कि यार मेरा रिस्ट्रिक्शन हट जाए उस पे से। हट गया रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन हट गया, ठीक है। अब उतनी खुशी ना, वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी हुई मेरे को, रिस्ट्रिक्शन हट गया। फिर मैं कंटेंट डालना स्टार्ट करा, करते करते लगभग 2 हफ्ते बाद फिर से इंस्टाग्राम मेरा बैन। और वो मैंने पोस्ट करा था लगभग 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते बाद जाके मेरा वो पोस्ट पे वो कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया पोस्ट। अब फिर डाउन हो गया यार मॉरल की, यार कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे होगा, मतलब इतनी प्रॉब्लम आ रही है। फिर मैंने कहा नहीं, चलो कोई नहीं, बैन हुआ, मैं थोड़ा एड वेड रन करूंगा, जैसे मर्जी होगा, एड्स पे जाते हैं, बैन हुआ। तो फिर मैंने एड्स पे उतरा। फिर वहां से धीरे धीरे करके, और ये जो मैंने सेट किया था ना 35 लाख रुपए, टोटल 35 लाख रुपीज, दिस इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। मैंने, हमारी मीटिंग हुई थी एलपीएल की, तो मैंने सेट तो कर लिया 35, बट मेरे पास कोई क्लू नहीं था मैं ऐसा करने कैसे वाला हूँ। क्योंकि ना आज के पहले मैंने इसको करा था, ना ही ऐसा बिलीव भी आ रहा था। बट जब मैं गोल सेट करा था ना, तो मैंने बनाया 25 लाख। जब मैं ऐसे गोल्स इसको लिख रहा था ना, हम पूरी टीम को टारगेट दिए थे कि भाई आप सबको ऐसे ऐसे लिख कर अपने सामने चिपकाएगा। तो फिर मैं एज सीनियर था, मैंने जब उनको बोला कि आप बड़े बड़े टारगेट लो, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार मैं सबको कह रहा हूँ कि टारगेट लो तो बड़ी लो। और मैंने संदीप महेश्वरी की एक बात सुनी थी कि अगर ड्रीम बनाना है, ये तो बड़े से बड़ा बनाओ ना। बड़ा बनाओ, तो ऑफ मैंने बोला कोर्स। हाँ, मैंने कहा 25 लाख का बना रहा हूँ, 7 से 25, चलो मुश्किल है लेकिन मैं कर लूँ। वो भी मेरे लिए मुश्किल था। मैंने कहा नहीं, 25 नहीं, 35 बनाते 3 महीने में। पता नहीं था कैसे होगा, और थोड़ा दिल में डर भी लग रहा था कि मैं टारगेट तो ले रहा हूँ, होगा या नहीं होगा। फिर मैंने बना के टांग दिया। 2 दिन नींद नहीं आई कि कैसे करूंगा, क्या होगा, ये चीजें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी।
बट पता है जब आप टारगेट बनाते हो ना, आप उसको सच्चे दिल से चाहते हो, तो समझ नहीं आता कैसे होती है। आपकी रील वायरल चली जाएगी, आपकी एड्स, मेरी एड से 50 पैसे सीपीसी जा रही थी, जब जहां लोगों की 2 रुपए जाती है, मेरी 50 पैसे जा रही थी सीपीसी। हम्म, मतलब 50 पैसे मुझे एक लीड आ रही थी, मतलब इतना एक सस्ता कभी किसी का नहीं करा। और मिनट। पता नहीं वो कैसे हुआ, क्या हुआ, इतने दबा के लीड्स आई, फिर चीजें भी मेरे फेवर में होने लग गई। और करते करते मेहनत किया, डेफिनेटली मेहनत हुई, हर रात में नंबर सेव करना, सबको क्लोजिंग्स करना, टीम को सपोर्ट करना, ट्रेनिंग्स करवाना, करते करते मैंने जो टारगेट लिया था, लगभग मैं आपको दिखाऊं, 1 महीना रह गया था। और जब 1 महीना रह गया था, मतलब इसको मैंने फरवरी में स्टार्ट करा था टारगेट को। और आपका ये अप्रैल 16 अप्रैल, हम्म, 16 अप्रैल को जब मैंने इसको फिर से दोबारा से फिगर आउट करा, तब मेरा 27 लाख हो चुका था 16 अप्रैल को। मतलब 2 ठीक है। महीने में, 2 महीने में आप हाँ 10 लाख कर चुके थे। हाँ, 2 महीने में 10 लाख कर लिया था। अब मुझे 1 महीना 10 नहीं, 9 लाख कर लिया था, 9 लाख। 9 लाख, अच्छा। हाँ ठीक है, 9 लाख कर लिया। अब मुझे 1 महीने में करना है 8 लाख, 27 लाख है, 35 लाख, 8 लाख, जो कि इम्पॉसिबल। आज से मैंने कभी 2 लाख के ऊपर टच ही नहीं करा था। 3 लाख में उस समय गया। अब करूं कैसे? तो ये 16 अप्रैल को, यहाँ पे आप डेट दे सकते हो, 16 अप्रैल को मैंने ये बनाया। ठीक है, कि मेरे को 27 लाख हो गया, मेरे को 35 लाख करने के लिए 8 लाख हिट करना है। कितना महीना में, कितने वीक चार में? हफ्ते 4 वीक में, में। 4 हफ्ते में। उसके लिए मुझे 2 लाख हर एक हफ्ते में हिट करना है। मैं लगा तो लिया, मैंने हम्म, मम्मी को ला के दिखाया, देखो मैंने ये करना है। बट मुझे अंदर से एक था कि करना तो है जैसे मर्जी, बट हम्म, बिलीव नहीं था, क्योंकि आज से पहले मैं कभी 2 लाख कभी हिट ही, 1.5 लाख भी हिट नहीं करा था कभी। हम्म, 2 लाख तो बहुत दूर की बात है। बस हम्म, बना लिया कि 1 महीने में मेरे को करना है 8 लाख, 2 लाख हम्म, का। सो बस लग गया। पहले पहले हफ्ते मेरा 1,70,000 हुआ, 30,000 रह गया। हम्म, दूसरे हफ्ते 1,80 हो गया, फिर 20,000 रह गया। हम्म, तीसरे हफ्ते भी मेरा लगभग 1,80,000 ऐसे हुआ, तो 20-30, मतलब करते करते 10-20 हजार रह जा रहा था। तो जो अच्छा। मेरा ये टारगेट था, डेडलाइन था हम्म, 13 अप्रैल, आप देख सकते हो हम्म, 13 अप्रैल, यहाँ पे डेट लिखा हुआ 13 अप्रैल। बट हम्म, ये मेरा टारगेट फुलफिल हुआ 19 अप्रैल को। ओह, ऑसम। मतलब कि एक तो यहाँ एक मैं लिखा हूँ, हाँ, मतलब चार हाँ, पाँच डन पाँच छह ऑन दिन लेट 19 हुआ। अप्रैल। हाँ। हाँ, 5-6 दिन लेट हुआ। तो वही ओके। पर्पस है, मैं ये कहना चाहूंगा, लेकिन मैं टारगेट तो लिया, चलिए कोई बात हम्म, नहीं, मैं वो डेट को नहीं पहुंचा, 4 दिन डिले ही पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचा तो सही। हम्म, जितना अगर हम बड़ा सोचेंगे नहीं, अगर मैं 35 लाख सोचा नहीं होता, तो मैं शायद में 25 लाख तक भी नहीं पहुंचा होता। ऑफ कोर्स। सो गाइस, बहुत सारे हम लोग जब सब लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल तो करते ही हैं, बहुत सारा वीडियो देखते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट भी देखते हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आके कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हम लोग सोचते, और जो आप वहाँ इन्फ्लुएंसर का जो कोटेशन या कुछ देखते हैं, वो आपके पास सामने लाइव है। लाइव ये है कि ड्रीम बिग। बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा, कोई बड़ा कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जो नया सिखा रहे हैं हम लोग, राइट? सब लोग जानते हैं ड्रीम बिग। और इतना बड़ा सोचो, इतना बड़ा ड्रीम रखो कि आपके रात की नींदें उड़ जाए। एंड दैट्स व्हाट यू आर सीइंग लाइव, लाइक ही टोल्ड यू, राइट? जब वो बना लिया, उनको पता नहीं था कैसे करना है, लेकिन करना है। ये नहीं कि पता नहीं कैसे करना था, सो जाए। उनका नींद उड़ गया था, 2 दिन तक वो सोए नहीं थे, उनको पता नहीं था कैसे करना है, बट ही फाउंड द थिंग। जब आप कोई चीज ठान लेते हैं ना कि मुझे ये चीज करना है, तो your mind starts working in different direction. Your mind start working ki how to get that. So your focus is only on how, right? Otherwise एब्सोल्युटली, you will have hundreds of reason कि कैसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कैसे फिर नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का इंस्टाग्राम बैन होता है स्टार्टिंग में, फेसबुक बैन होता है, ये बैन होता है, व्हाट्सएप बैन होता है। एंड बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं कि अरे ये नहीं, ऐसे नहीं होगा। एंड थिंग इज दैट यू वर्क ऑन दैट। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ये सब एक तरह से टूल है आपके लिए। आपका बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा जिस दिन आप ठान लोगे कि अब नहीं हो सकता। और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप ठाने हुए हो कि मुझे करना है, राइट? एब्सोल्युटली, सो दिस इज व्हाट इट इज, एवरीथिंग इज हियर। ग्रेट। एवरीथिंग इज माइंडसेट। और ये इससे मुझे बिलीव हो गया, जब मैंने ये अचीव कर लिया ना। और अभी जो मैंने टारगेट लिया वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, क्योंकि मुझे एक चीज बिलीव हो गया। नहीं, वो मैं दिखाइएगा। दिखाऊंगा नहीं, वो मैं दिखाऊंगा नहीं अभी। आई कम लाइव विद समथिंग लाइक दिस सेशन ओनली, मैं वहां पे शो करूंगा। क्योंकि मेरे को ये करने के बाद ना मुझे बिलीव हो गया कि समथिंग इज, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये करने के बाद मुझे बिलीव हो गया, मैंने लिख कर। और एक चीज सर, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, कि ये सिर्फ यहाँ पर लिख देने से नहीं होता। मैंने इसको ऑफ कोर्स। लिखा, एक बिलीव आया, इसके साथ साथ मेहनत तो ठीक है लगेगी, बट आपको चाहिए एकदम स्मॉल स्टेप्स ऑफ वर्किंग। स्मॉल स्टेप्स मतलब मुझे 2 लाख तो करना है, बट इसके लिए मुझे डेली वाइज क्या वर्क करना है, मैंने हर चीज को ब्रेक डाउन कर दिया था। कि मुझे इस टारगेट के लिए दो मुझे लाख के लिए कितने दिन, कितना कितने, सेल्स करना है, उतना एग्जैक्टली कितने इतना लीड सेल्स के चाहिए। लिए कितना लीड्स मुझे व्हाट्सएप में चाहिए, उसके लिए कितना लीड एग्जैक्टली, जनरेट करना है, रॉ लीड। वो पूरा ब्रेकअप बैकवर्ड्स, या
एवरीथिंग मैंने सब चीज कागज में लिख कर रखा था कि मुझे दिन का इतने लीड चाहिए, इतने लीड आएंगे तो इतने क्लोज होंगे। और मैंने एवरेज सेल्स भी निकाल लिया कि मैं लाइट स्टैंडर्ड प्रो करूंगा तो मेरा एवरेज लगभग 3,000 3,500 का सेल आना चाहिए। सब चीज मैंने काउंट करके मैंने पर डे का टास्क निकाला था कि मुझे पर डे का टास्क कितना करना है। और मेरा पर डे का यहाँ पे आप देख सकते हो 30,000 हिट था। तो 30,000 तो था, ये बहुत डिफिकल्ट था 30,000 करना, बट जब मैंने लिखा तो 30 का 40 भी होने लग गया। हम्म, और किसी ने अगर मिस हो गया, मान लो 25 किया, मुझे पता है कि मैं 5,000 से लैग कर रहा हूँ, तो मैं हम्म, अगले दिन मेहनत करके उसको कवर अप कर दिया, कवर ज्यादा कब कर दिया। करना। हाँ, तो आपका डेली टास्क आपको पता होना चाहिए अगर आप बड़ा करना चाहते। देखो ये लीड्स आगे बट देयर बहुत वाज बड़ा अ 1 प्लेटफॉर्म लाख इन है। सिंगल डे आल्सो ना, आपका एक हुआ था ना? 1 लाख सिंगल डे मैंने लगभग 3 या 4 बार अचीव करा है। 3 या 4 बार अचीव किया, वेरी गुड। हाँ, अभी मेरा हाईएस्ट 1,37 है ये। मैं आपको बताता हूँ, ये सब चीजें ना मैंने और भी लोगों को देखा था 1 लाख अचीव करते हैं, या फिर पचास हाँ, हजार दूसरे प्लेटफॉर्म पे, इधर उधर मैंने इधर अपने प्लेटफॉर्म पे भी देखा। निशाक में भी, तो हाँ। हाँ, तो मैंने देखा यार मतलब कैसे करते हैं, मतलब मुझे ऐसा हुआ कि मतलब कैसे लोग कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, पवन ने भी अच्छा करा है, सायक है, जब उस 50,000 कर रहा है, ये कर रहा है, मेरे को मतलब रातों की नींद हो जाती है, कैसे कर रहा है ये, हमारी 20,000 में हालत खराब हो रही है, 50 कैसे कर रहे हैं। जब ये चीज भूख आती है ना जानने का कैसे हो कैसे रहा है, ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। यही भूख से ना फिर मेहनत आती है कि मेहनत करना है और चीजों को जानना है कि कैसे हो कैसे रहा है और खोद के निकालना है। तो यही करते करते आज सेम चीज हम कर पा रहे हैं। आज हमें हम्म, देख के कुछ लोग सोचते होंगे कि विकास सर कैसे कर रहे हैं, अगर हम्म, वो बंदे बस सोच के छोड़ देंगे तो वहीं पे खत्म। अगर वो हम्म, उसके पीछे लग जाएंगे कि नहीं ये कर सकते तो मुझे भी करना है, कैसे कर रहे हैं पता लगाए मुझे भी करना है, तो वो हम्म। दिन दूर नहीं है, वो भी यहाँ बैठे रहेंगे आकर। ऑफ कोर्स, और अभी देख भी रहे हैं हम लोग, बहुत सारे लोग पंप अप हो चुके हैं, बहुत सारे लोग सुबह के कह रहे विकास कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं हफ्ते में। एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग, राइट? लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग ग्रेट, सुपर, ऑलराइट। और बताइए, मतलब जो आप एड्स चला रहे हैं, राइट? तो हम्म। मतलब ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन ऐसे ही कि मतलब किस तरह का टारगेट होता है, किस तरह का एड्स होता है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा, उसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, सो एड्स बेसिकली मैंने ट्राई करा था जब मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा था, तो बहुत तकलीफ, मतलब स्टार्टिंग डेज ना बहुत स्ट्रगल वाली होती है सबकी, और स्ट्रगल करने के बाद रिजल्ट मिलता है। तो हम्म, मुझे एड्स रन करना आता नहीं था, ठीक है, मतलब बेसिक आता था, लेकिन मैं बहुत लोगों का देख रहा हूँ कि एड्स अकाउंट बैन हो रहा है, ये बैन हो रहा है। अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि बैन हो गया तो फिर जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा, तो मैंने एक पर्सन को कॉन्टैक्ट करा, उसने मेरे से 3,000 रुपया लिया कि मैं तुम्हारा एड रन करूंगा, ठीक है। सो उसने एड रन करा, बट मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। फिर मतलब 10 दिन बीता, बट मेरा 3 रुपए 4 रुपए से पीछे जा रहा है। मैंने डिफरेंट चीजें ट्राई करा, मैंने उसको बोला ये वाली यूज करो, वो वाली यूज करो, बट उतना अच्छा रिजल्ट आ नहीं रहा था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। मैं दिन के मान लो 500 लगा रहा हूँ, मेरे एक स्टैंडर्ड निकल जा रही है, मैं खुश हूँ कि चलो 25,000 का 2,500 का तो प्रॉफिट हुआ कम से कम। फिर ये हम्म, करते करते फिर मैंने खुद से हाथ में मारना स्टार्ट करा। हम्म, जब मैं स्टार्ट करता उस समय कुछ लोग थे जो काफी अच्छा कर रहे थे, मैंने उनको कांटेक्ट करा कि आप कैसे कर रहे हो, मतलब क्या चीजें कर रहे हो। बहुत सारे लोग को जो मतलब मेरे जूनियर्स ही हैं, मेरे जूनियर्स ही हैं, बट यहाँ पे एक लर्निंग मैंने सीखा कि बड़ा छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ऑफ अच्छा कर रहा कोर्स, है आप उससे सीख सकते हो चाहे वो छोटा हो। तो डेफिनेटली। मैंने बहुत सारे जूनियर्स लोगों को भी कॉल करा कि आप अभी काफी अच्छा मोमेंटम में हो, 1 लाख 1.5 लाख कर रहे हो महीने का, तो क्या क्या स्ट्रैटेजी कर रहे हो। तो मैंने 10 लोगों से बात करा, चीजों को सीखा, ये चीजें कर रहे हैं। फिर उन 10 के बातों का मैंने कंक्लूजन निकाला, फिर मैंने अपना एक खुद का एड कॉपी बनाया, इंस्टा पे डायरेक्ट डाला और वहां से बूस्ट करा। हम्म, फिर मैं एड मैनेजर छोड़ दिया, एड मैनेजर पे नहीं चलेंगे, फिर उसको बूस्ट करा डायरेक्ट इंस्टाग्राम से। फिर वहां हम्म, से जो रिजल्ट आने लग गया, मैंने जिस जिस पर्सन से करवाया था, मैंने एक ही महीना करवाया, फिर मैंने रिन्यू नहीं करवाया। फिर हम्म। मैंने इंस्टाग्राम को बूस्ट कर दिया, इंस्टाग्राम बूस्ट से काफी रिजल्ट आ रही है अभी फिलहाल। अच्छा, तो आपका एड टाइप जो है, मतलब ज्यादातर वो जो पोस्ट बूस्ट करके करते हैं आप इंस्टाग्राम पे? पोस्ट बूस्ट करके ही, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट है ना, लोग उसमें बहुत ज्यादा पता है, लोग बहुत ये टेक्निकल बन जाते हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने लगते हैं। सिंपल सा फंडा है, हमारा जो बिजनेस है दिस इज हम्म, फॉर एवरीवन, ठीक हम्म, है। मतलब ऐसा नहीं कि आप जिसको मर्जी करवा लो, बट मोस्टली अगर कोई बंदा है जो फोन चलाता है तो दैट पर्सन कैन डू। अगर वो ऑफ कोर्स। हाउसवाइफ हो, जॉब में है, या कुछ भी करता है, दैट पर्सन कैन डू। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मुझे इसको टारगेट करना है, इसको टारगेट करना है। तो हमारा टारगेट पूरा इंडिया में है, तो मैं पूरे इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ। और हम्म, मैंने हिट एंड फाइल करा, और मैंने एज ग्रुप सिलेक्ट कर दिया, मुझे 20 साल के ऊपर चाहिए, क्योंकि उसके छोटे जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट दो ऐसा नहीं है कि वो पैसे अरेंज नहीं करते, वो भी अरेंज करते हैं, हम्म, ठीक है। तो 20 साल से मैंने 30 साल तक डाला, तो वहां से हम्म, जो भी आएगा वो मेरा टारगेट ऑडियंस है, मैंने ये हम्म, सोच लिया। बस हम्म, वहां से लीड आने स्टार्ट हुई। फिर तो ऐसे ऐसे लीड आने लगे जो कहने लगे पैसे नहीं है, ये नहीं है, कुछ कुछ लीड, बट क्लोजिंग जा रही थी मेरी, अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी। फिर मैंने हम्म, उसमें एक थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया, मैंने उसमें थोड़ा टारगेटिंग लगाया। टारगेटिंग मैंने क्या लगाया, मैंने बड़े बड़े कॉलेजेस जो हैं, हम्म, मैंने सर्च मारा गूगल में कि टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। अब हम्म, प्राइवेट कॉलेज में कोई पढ़ रहा है तो उसके पास पैसे तो होंगे ही, वो ये तो नहीं कहेगा पैसे नहीं है मेरे पास।
ठीक है, अब ये चीज कोई आकर आपको सिखाएगा थोड़ी ना कि आप ये दिमाग लगाओ, ये खुद से आप दिमाग लगाते हो। तो फिर और भी बड़े बड़े ब्रांड्स एंड ऑल जो ब्रांड्स यूज करते हैं उसके पास पैसे होंगे, तो ये सब मैं टारगेटिंग में डाला। तो इससे जो लीड आ रहे हैं वो आ रहे हैं अच्छे, जिनके पास पैसे भी हैं। मतलब हमारा प्लेटफॉर्म इतना तगड़ा है ना, प्लेटफॉर्म इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी हमने, हमारे पास इतने टेस्टिमोनियल्स हैं, इतने सारे रिजल्ट है ना, कि जिसको आप दिखाओगे ना वो बंदा ज्वाइन कर लेगा तुरंत, प्रोवाइड उसके पास पैसे हो। बस उसका एक ही डाउट होता है कि कहीं मेरे पैसे ना डूबे। अगर आप उसको ये बिलीव दिलवा दो कि यार आप जो लगा रहे हो बिल्कुल सही जगह लगा रहे हो और यहाँ पैसे वैसे डूबते नहीं है। एक्चुअली क्या हो गया ना सर, आज के डेट में बहुत सारे स्कैम बहुत स्टार्ट हो सारे गए लोग स्पेशली स्कैम करते हैं, हाँ। स्पेशली ट्रेडिंग में। और जब लोग आके मुझे बताते हैं ना कि मैं खुद हिल जाता हूँ कि भाई बेवकूफ हो तुम। 1-1 लाख, कोई कहता है 1.5 कि लाख, कोई जमीन बेच के कोई पैसा एग्जैक्टली लगाया, कोई लोन लगा के पैसा लगाया, ऐसे एग्जैक्टली ऐसे ले लेके सब लगाया हुआ सब। दैट इज व्हाट। मेरे पास आज एक लिटाई बोलता है मेरे लगभग 10,000 का लोन है मेरे ऊपर। मैं बोला कैसे किया? बोला ट्रेडिंग में। और वो इतने बेवकूफ होते हैं, ट्रेडिंग वाले करते भी क्या है ना, उनसे कुछ कुछ होते हैं, पहले उनसे 20,000 लेंगे, फिर बोलेंगे आपका पैसा यहाँ पे अटका है, आपको 50,000 मान लीजिए 10,000 15,000 और देना है। और वो देते भी रहते हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख खर्च कर देते हैं और स्कैम। तो सबसे ज्यादा स्कैम आपका ट्रेडिंग में होता है। मैं यहाँ पे जितने लोग हमारे लोग हैं, मैं आपको भी एक चीज बताना चाहता हूँ। देखो इजी मनी कुछ नहीं होता। आपको ना पैसे कमाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और लीड्स खुद आर्क से में कभी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं। एग्जैक्टली हम लीड्स आर्क में कभी नहीं कहते कि आप ज्वाइन कर लो पैसे आ जाएंगे। आपको स्ट्रक्चर वाइज एक सिस्टम सिखाया जाता है किस तरह वर्क करना है। और आप भी माइंडसेट ये लेके आ रहे हो कि मुझे एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है और करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है आपने पैसे डाल दिए फिर आप एक हफ्ते बाद स्पॉन्सर कॉल करोगे मेरे मेरे पैसे नहीं आए अभी तक, देयर इज नो ऐसे ये मनी सिस्टम। मेकिंग मशीन, या। एग्जैक्टली वो आपकी ट्रेडिंग में होती है वहां पैसे मिलते हैं, बट वहां पे आपका पैसे होते भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जाते हो वहां पे लालच के कारण। आप जाते हो कि मुझे बैठे बैठे पैसे चाहिए। अब बैठे बैठे पैसे चाहोगे तो भाई अगर जो बंदा बैठे बैठे खुद पैसे कमा रहा है वो आपको क्यों देगा? अरे मैं आज खुद, मैं अपना जीरोधा मेरा जो अकाउंट है, जो मैं ट्रेडिंग तो करता नहीं हूँ, मतलब कि किसी तरह का भी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, बट जीरोधा अकाउंट में मैं अपना लॉगिन किया था। तो लॉगिन करते आई थिंक देयर इज अ सीबी गाइडलाइंस और सम गाइडलाइंस दैट आफ्टर लॉगिंग इनटू जीरोधा दैट देयर इज अ पॉपअप इज कमिंग व्हिच यू हैव टू सेलेक्ट एंड देन ओनली यू कैन लॉग इन। और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 90%, मोर देन 90% पीपल लूज मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। हम्म। Clearly likha hua, 90% people lose, average more than 50,000 rupees they have lost, right? So you're accepting that this risk is there, and then you can enter in हम्म। Zerodha today. I'm talking about today. So people are not aware. They just think that they will put money somewhere and automatically money comes. There are many people who tell that. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि trading में नहीं होता. There are people who have डेफिनेटली। earned huge amount of money in trading. I know people, but that doesn't mean that everybody can do that. Okay. तो पैसा चाहे आप 5,000 कमाओगे या 5 लाख कमाओगे, पहले वो कमाने के लिए आपके पास अपना पैसा, वो आपको सीखना पड़ेगा कि मुझे खुद से कमाना। जब आप 5 लाख कमा लोगे तो आपके पास इतना होगा कि चलो 50,000 ना मैं रिस्क ले सकता हूँ ट्रेडिंग में, डूबे तो डूबे, तब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यू कैन नॉट डिपेंड एज योर मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम ऑन ट्रेडिंग एंड ऑल, दैट इज द थिंग। एब्सोल्युटली। तो और आप भैया जो 5, ट्रेडिंग आप जो बता रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में ना, सॉरी टू कट यू, वो ट्रेडिंग जो पैसे कमाते हैं 90% फेल होते हैं ऐसा नहीं है। जो पैसे कमाते हैं ना उनको ट्रेडिंग आता है, जो लाखों आता कमाते है, हैं दैट्स करोड़ों व्हाट, आता है। और जो 90% फेल होते हैं उनको ट्रेडिंग आता नहीं है। वो आता नहीं स्टॉक है। मार्केट में घुसते ही वो बस सोचते हैं कि सीधा इंटरडे हाँ, इंटरडे में घुसते हैं। मैंने ये दैट्स व्हाट। रिसर्च भी पढ़ा है कि पहले एक दिन ही घुसते इंटरडे में घुसते हैं कि यार मुझे पैसे लगाए, पैसे तो बनेंगे कम, इधर माइनस होगा इधर अप होगा, 50-50 चांसेस है। बट ऐसा नहीं होता है। वो हमारे साइकोलॉजी से आप खेलते हो। आप अगर एक बार पैसे बन जाते हैं ना आपके, तो उस चाप में फंस गए आप। वो पैसे जब तक आप वहां से हटोगे, मतलब तब तक आप वहां से निकलोगे नहीं जब तक आपके पैसे वहां डूबेंगे नहीं तो आप वहीं पर अटके रहोगे। जितना प्रॉफिट हो सबके सब डूबने नहीं, वहां पे मैं भी डूबना। करता था, मैं 5-6 साल पहले मैं भी ट्रेडिंग, शेयर ट्रेडिंग करता था। तो मेरा क्या होता, जिस दिन अर्निंग होता था, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 2-3 महीना किया होगा, जिस दिन अर्निंग होता था उस दिन टोटल दिन का इनकम पूरा प्रॉफिट हुआ 6,000, 8,000, 10,000 ऐसे ही होता था। लेकिन जिस दिन लॉस होता था 20,000, 30,000 ऐसे लॉस होता चला, क्योंकि जब लॉस होता रहता था आदमी सोचता है इसको स्क्वायर करे, इसको और ज्यादा करे, इसको ऐसे करे, आदमी पैनिक होने लगता, राइट? जब लॉस एब्सोल्युटली। होता था तो आदमी और ज्यादा पैसा लूज करता। सो दैट इज द तो आप जब प्रॉब्लम हियर। ट्रेडिंग करते थे तो आपको ट्रेडिंग आती होगी थोड़ी बहुत, आप अपने नॉलेज से। ऑनलाइन कोर्सेस सीख के थोड़ा करना शुरू हम्म। किया, थोड़ा थोड़ा करके, बट होता है ना कि आदमी थोड़ा सा सीख लिया, लगता है कि हम मास्टर बन गए। मास्टर हो गए, ये चीज गलती होती है। हम थोड़ा सा जैसे हाँ, यहाँ पे भी हमारे लीड साथ में भी आप आगे कहते हो कि मैंने सब सब कोर्स देख लिया, मैं सब हाँ, कुछ कहता हूँ। मैं ऐसे नहीं होता। अगर आप सब कुछ कर रहे हो सही तरीके से तो आपको रिजल्ट आना बाउंड है, वो हंड्रेड आएगा ही परसेंट आएगा। आएगा। लोग एक हफ्ते में आके बोलते हैं कि मैं पूरा कोर्स देख लिया। अरे भाई, सबसे पहली बात कि आपने तो कुछ, आपको तो एक एक वीडियो जो आप देख रहे हो वहां उसको प्रैक्टिस में लाना है। एक हफ्ते में कैसे हो जाएगा? लोग एक हफ्ते में आके बोलते हैं मैं तो सब कुछ कर चुका हूँ, मैंने सारा वीडियो देख लिया है और वहां से मुझे अर्निंग नहीं हो रही है। तो अगर वो आप देखने से तो
हो सकता है आपने देखा होगा, मैं वो डाउट नहीं कर रहा हूँ, 90% उसमें झूठ बोल रहे हैं वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन वो अलग बात है, आपने देखा या नहीं देखा उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उनसे क्या सीख रहे हैं, दैट इज दैट इज इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट। सो एब्सोल्युटली। ट्रेनिंग कोर्स वीडियो फॉर्मेट में है, तो ये वीडियो देखने के लिए नहीं है, ये वीडियो से सीखने के लिए, ट्रेनिंग कोर्स से सीखने के लिए, और उस सीख के आप उसको अप्लाई भी करना होगा, वो भी आपके हाथ में है। मेहनत करना आपके हाथ में, ऐसा नहीं कि डे वन से रिजल्ट आने लगेगा, आ सकता है, मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद से पैसा कमाना है, ये कॉन्फिडेंस, ये आपका इरादा होना चाहिए, देन ओनली यू कैन डू दैट। बिल्कुल, बिल्कुल, बात सही है। मैं अपनी टीम में यही कहता हूँ, जब कोई आके कहता है कि मैंने क्या 2 दिन में 4-5 वीडियो देख लिए, मैंने कहा भाई मूवी देखने थोड़ा ना दिया हुआ है आपको कि बैठ के मूवी दैट्स देख व्हाट। कर आ गए कि मैंने देख लिया। मैंने कहा आप सीखने के लिए बैठे हो तो आराम से देखो, गो स्लो एंड स्टेडी, नोट्स बनाओ। बस ऐसा नहीं कि मूवी चल रहा है देख कर आ गया, सर मैंने देख लिया, कोटा खत्म मेरा। इस तरह नहीं होती। टेक टेक योर रिस्पांसिबिलिटी, यू नो गाइस, अपनी रिस्पांसिबिलिटी खुद लो, बिकॉज़ आपके स्पॉन्सर ने आपको यहाँ पे एनरोल करवाया, या आपने उसके साथ नहीं तो किसी के साथ आप एनरोल करते हैं यहाँ पर, ठीक है? प्लेटफॉर्म आपको मिल गया एक तरह का सा। अब अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद लो कि यार मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है। आपको क्या लगता है मैं यहाँ पहुंचा हूँ कि मेरे स्पॉन्सर ने मुझे पकड़-पकड़ के चम्मच में खिलाया कि विकास ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। नहीं, वो चीज़ मेरे अंदर भूख थी कि मुझे करना है। अगर आपके अंदर भूख है, या जो भी यहाँ पे पर्सन अच्छा कर रहे हैं, लीड्स आके आप लीडर बोर्ड जाके देखो, टॉप 10 में जो आते हैं, वो सब खुद से कर रहे हैं। और उनको भी किसी के स्पॉन्सर ने सपोर्ट नहीं करा कि ये करना है, वो करना है। सारी ट्रेनिंग लीड्स की थी, उन्होंने ट्रेनिंग देखा। हो सकता है किसी के स्पॉन्सर ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, किसी के कम कर रहे हैं, बट टोटली आप उस पर डिपेंड हो जाओ तो दैट इज़ रॉन्ग। मैं अपनी टीम को पर्सनली ट्रेन करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं, मैं उनको कहता हूँ कि मुझे पर्सनल डीएम मत करो। मैं जब ट्रेनिंग करवाता हूँ, मैं उनकी टीम के, मैं बोलता हूँ भाई तुम 3 घंटे मेरे ट्रेनिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जितने क्वेश्चंस है, बस पर्सनल डीएम नहीं, क्योंकि हमारे भी काम होते हैं। आप पर्सनल डीएम क्या बोलते हो कि सर मैंने ये कोर्स देख लिया, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये कर लिया, नेक्स्ट क्या करना है, लीड्स नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज आप अपने ऊपर लो अकाउंटेबिलिटी की, लीड्स नहीं आ रही, कुछ तो कम गलती कर रहा हूँ, और ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। मैं आपको चीज बता रहा हूँ, जो हमारे टॉप इन्फ्लुएंसर, टॉप अफिलिएट्स हैं, आप उनकी प्रोफाइल पर जाओ, ठीक है? आप उनकी प्रोफाइल को जाओ और दो यार, आधा-आधा घंटा दो आराम से बैठ के, ठीक है? देखो उनकी प्रोफाइल पे उन्होंने कैसे हाइलाइट्स लगाए हैं, क्या कलर यूज़ करा है, क्यों यूज़ करा है, क्या कंटेंट डाल रहा है, उन्होंने टॉप 3 में अपने जो पोस्ट या रील्स को पिन करा हुआ है, क्यों, इसी को क्यों पिन करा हुआ है? जाकर सीखो उसको। उन्होंने पिन करा, कुछ सोच समझ के पिन करा होगा ना कि टॉप 3 जो पोस्ट है इनको पिन करा है। आप जैसे मेरी प्रोफाइल पे जाके देखोगे, तो मैंने वहाँ पिन करा, कोई लॉजिक है, मेरे को वहाँ पे अवार्ड्स मिले हैं। वो 3 पोस्ट से ना मेरा बहुत सेल आ जाता है। जब लोग आते हैं मेरे फोटो देखते हैं सोनू शर्मा के साथ, मेरी फोटो देखते हैं अय्या सर के साथ, स्टार्टिंग में अवार्ड्स मिले हैं। तो वो देख के लोग आ जाते हैं कि सर मैंने आपके इतनी अवार्ड्स देखे, आपके साथ एनरोल करना है। तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ, सोनू शर्मा नहीं होंगे, कोई और होगा, कुछ तो आपने अच्छा करा होगा, नहीं होगा, डाउन द लाइन होगा। आपकी अच्छी फ़ोटो है, उसी को पिन कर दो, जो भी जहाँ पे आपको अच्छा व्यू मिला हुआ है, जहाँ पे आपने कुछ अच्छा एडिट करके कुछ पोस्ट बनाया, उसी को पिन करके रखो, ताकि फर्स्ट इंप्रेशन में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। या जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है वो आपका दुकान है, अगर आप अपने एब्सोल्युटली। दुकान को सही से शो कुकिस नहीं करोगे और सोचोगे कि सेल्स हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। सो दैट्स योर शोरूम, दैट्स योर शॉप। So you have to decorate your shop. You have to what do you say, highlight your shop. Then only you will get sales. So profile optimization बहुत बहुत जरूरी है and most important है। आप जितना भी ad चला लो, जितना भी करो, लोगों को ट्रस्ट हुँ, आपके हुँ। प्रोफाइल देख के ही आएगा, प्रोफाइल देख राइट? कर ही आएगा, क्योंकि ऑनलाइन ऑलरेडी चीज़ें थोड़ी गंदी हो चुकी है कि ऑनलाइन ऑनलाइन देखिए, मेरे माइंड में जब मैंने लीग तक स्टार्ट किया था, मेरे माइंड में भी ये चीज़ें थी, कहीं स्कैम फ्रॉड ना हो जाए, और सबके माइंड में होता है ऑनलाइन सोचने से माइंड में ये आता है कहीं स्कैम फ्रॉड ना हो जाए। तो इससे ये स्कैम फ्रॉड माइंड से कैसे हटता है? जब आप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स देखते हो, रिलेवेंस प्रूफ देखते हो, तो वो सारी चीज़ रिजल्ट आपकी देखते प्रोफाइल हो, पे होनी, हाँ। रिजल्ट देखते हो, तो आपकी प्रोफाइल पे सारी चीज़ होनी चाहिए, तभी सामने वाले पर्सन को लगेगा नहीं ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा जो भी कर रहा है सही चीज़ कर रहा है, तभी आपके पास आएगा ना। तो इसीलिए आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ करना इतना ज़रूरी है। कुछ भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि बहुत टफ है। एवरीथिंग इज़ वेरी, वेरी, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है? आराम से आप करोगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट रेगुलर करो। एवरीडे कुछ ना कुछ करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो, हो जाएगी चीज़ें। आप सोचोगे 1 दिन मैंने करा, फिर 2 दिन ब्रेक लेके, फिर तीसरे दिन आपके स्पॉन्सर को फ़ोन करा कि मैंने इतना करा, ये हुआ, वो हुआ नहीं, ये हुआ। तो इस तरह नहीं होती है। अपनी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, कंप्लेन, यू वही नो। बात, कंप्लेन करने का एटीट्यूड रहेगा तो वो आप कभी सीख ही नहीं पाओगे, आगे बढ़ोगे ही नहीं। एब्सोल्युटली, एक बहुत अच्छा कोट है या ये क्रिएटर्स नेवर कंप्लेन, यू नो, और कंप्लेनर्स नेवर क्रिएट। जो क्रिएट्स। कंप्लेन करते हैं वो कभी कुछ क्रिएट नहीं करते हैं, और जो क्रिएटर्स होते हैं ना, उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे बट वो कंप्लेन नहीं करेंगे। मेरे 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 प्रॉब्लम थी ना, इंस्टाग्राम बैन हो रही थी, ऐड तब नहीं से चल रहा था, मुझे मुझे पता ऐड भी नहीं डालनी था। नहीं थी। एक्चुअली मतलब आपने मेरे से भी नहीं बोला होगा शायद इंस्टाग्राम बैन मैंने का। किसी से नहीं बोला, मुझे बस मैंने याद नहीं खुद कि से आपने बैठा। बोला है मुझे। हाँ। हाँ, मैं आराम से बैठा, मैंने देखा क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स लिखे, इसके सॉल्यूशन क्या है। मैंने देखा मेरे को एड्स नहीं आता, मैं किसी को हायर कर सकता हूँ, ₹3000 देके हायर किया, नहीं चला, मुझे रिजल्ट नहीं आई, तो मैं क्या रो बैठ के कि मेरे ₹3000 डूब गए। मैंने बोला नहीं यार, 3000 से आगे बढ़ना है,
तो मैं खुद से सीखा, हाथ पाँव मारा, पोस्ट बनाने स्टार्ट करे। मेरे रूटीन भी ऐसी हो गई थी कि मंडे से लेके सैटरडे तक मैं वर्क करता था, हफ्ते के मारता था आराम से 2-3 लाख, ठीक है? और संडे बैठ के मैं थोड़ा रिलैक्स करके और उस दिन कंटेंट क्रिएट करता था। और कंटेंट क्रिएट करके पूरे वीक के लिए मैं शेड्यूल डाल देता था, शेड्यूल कि ये शेड्यूल हो गए। अब वो वीक अपने आप वो अपना पोस्ट होता रहेगा, कंटेंट डलता रहेगा और मैं अपने काम पे बिज़ी रहूँगा। तो उस चीज़ों को मैं डिवाइड करा किस तरह मुझे वर्क करना है। अभी देखो आपके पास कब टाइम है, अगर आप जॉब में हो इतना इतना देखो टाइम तो देना पड़ेगा बॉस। आप ये सोचोगे कि नहीं बिना दिए कुछ हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। आपको 2 घंटे, 3 घंटे देखो यार मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आए हो लीड में, आपका इनिशियल पर्पस यही है, सबका मैं बताता हूँ, मेजॉरिटी का यही पर्पस है कि यार महीने का कम से कम 20-30 हज़ार रुपए आ जाए। और अगर आप 2 घंटे दोगे ना, अब वो पैसे आराम से आ जाएँगे, आराम से आ जाते हैं 2 20-30 इतना तगड़ा प्लेटफ़ॉर्म आपको मिल चुका है, बना-बनाया सिस्टम है, बना-बनाया टेस्टिमोनियल्स है। और आज के डेट में तो आसान इसलिए हो गया क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रूफ्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स, बहुत सारे ट्रेनिंग सब पड़े हुए हैं। जब हमने स्टार्ट किया तो उस समय कहाँ इतने ट्रेनिंग्स थे, कहाँ इतने तो फिर प्रूफ था, ना ही कोई रोड मैप था कि देखने के लिए यार इतना भी पॉसिबल है। ट्रू, ऑलराइट। तो अभी आप जैसे बताया कि संडे आप रिलैक्स करते, संडे को कंटेंट बना के आप पूरा शेड्यूल कर देते पूरे वीक का। हाँ, संडे बना के मैं पूरे वीक का डाल देता हूँ। दोनों प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे, ओनली इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, फेसबुक पे मैं कभी-कभी जब फेसबुक में एक फीचर है, जैसे स्टोरीज़ का जो होता है वो तो डायरेक्ट फेसबुक में चला जाता है। और इंस्टाग्राम इसका एक फेसबुक का एक है कि अगर आप शेड्यूल करते हो तो फिर इंस्टाग्राम पे अगर आप शेड्यूल करते हो तो फेसबुक पे नहीं जाता शायद, नहीं ठीक जाता। है? तो जब मैं लाइव पोस्ट करता हूँ तुरंत जैसे मैंने आज हमारी ट्रेनिंग का करा वो फेसबुक में चला गया होगा, वो चला जाता है फेसबुक में। तो अच्छा, फेसबुक मेरा चल रहा है मतलब वो साइड बाय साइड में उसको लेके कम चल रहा हूँ, पोस्ट, छोड़ नहीं दे रहा हूँ। मेनली मेनली हाँ, इंस्टाग्राम। मेनली इंस्टाग्राम पे फोकस कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम से ही सब चीज़ हो रही है, इंस्टाग्राम पे अच्छा, ही। अच्छा। एक और कंप्लेन होता है बहुत सारे लोगों का कि हम वीडियो लिंक देते हैं, कोई वीडियो देखता नहीं है। और ये कॉमन चीज है, सबके साथ होता है। आप अगर हुँ, 10 हुँ। को भेजेंगे तो हो सकता है कि कोई 4-5 वीडियो देखेगा, कोई 4-5 नहीं देखेगा, वो कॉमन चीज है। लेकिन अगर आप 2 ही को भेजेंगे तो ऑब्वियसली अगर वो 2 नहीं देखा है तो आप रोते रहेंगे कि आपको वो आया नहीं है। बट ऐसा कुछ है, मैसेज में कुछ टिप देना चाहते हैं कि विच विल मेक देम टू ओपन द वीडियो एंड वॉच इट कंप्लीटली, ऐसा कुछ टिप देना चाहते हैं? डेफिनिटली। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्टेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे। सो एक्सेप्ट कर लो कि आप वीडियो भेजोगे, सारे देखेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। इसी के लिए एक सेकंड पार्ट आता है, वो है फॉलो अप। हम्म, फॉलो अप हम करते हैं ताकि सामने वाला पर्सन वीडियो देखे। देखो यार बड़े से बड़े थम्स अप वाले अपने इतने लाखों रुपए खर्च करके सेलिब्रिटी लेके आते हैं, उस वो ऐड को हम स्किप कर देते हैं, ठीक है? हम देखते नहीं, लेकिन वो जब ऐड हमें बार-बार दिखती है, बार-बार दिखती है तो हम एक बार देख के लेते हैं। तो हम्म, आपको भी ये फॉलो अप करनी होती है, जो वो बार-बार दिखती है दैट इज़ कॉल्ड फॉलो अप। आपने हम्म, प्रेजेंटेशन भेजा, ठीक है? बिलीव रख लो कि सामने वाला पर्सन देखेगा तो अच्छी बात है, नहीं देखेगा कोई बात नहीं। हमको नए-नए लोगों को फोकस करना है, ठीक है? हम्म, अब आप फॉलो अप कैसे करोगे? जैसे हम्म, आज एक बंदा आया, मैं क्या करता हूँ डेली डेली आप ब्रॉडकास्ट बनाता हूँ डेली का। मान लो आज मेरे पास 60-70 लोग या फिर 100 लोग आ गए, तो मैंने हम्म, उनका नाम सेव कर दिया। जैसे आज जुलाई 12 है, जुलाई 12 जो भी नाम होगा वो सेव हो जाएगा, ठीक है? तो मैं उसका ब्रॉडकास्ट रात में बना लिया और कल मॉर्निंग में उठने के साथ ही मैं उनको एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजूँगा। और ब्रॉडकास्ट मैसेज मेरी एक टीम का टेस्टिमोनियल है जहाँ पे वो पर्सन कह रहा है कि थैंक यू विकास सर, आपकी वजह से मैंने इतना अर्न कर लिया, ये कर लिया। ठीक है? मुनेश राजपूत का वीडियोज़ है और उसके नीचे मैसेज लिखा हुआ है। तो मैं उनको एक रिजल्ट भेजता हूँ, एक टेस्टिमोनियल भेजता हूँ। इससे क्या होता है, मैं उनको कहूँगा कि भाई वीडियो क्यों नहीं देखे आप, वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो? तो वो मेरे को इग्नोर करेंगे। बट मैं उनको एक टेस्टिमोनियल भेज रहा हूँ, तो वो जब वो देखेंगे ना, तो कहेंगे कुछ तो बात है इस पर्सन में, कुछ तो बात है कि यहाँ से ये पर्सन इतना कमा रहा है, इसने जो रिजल्ट भेजा है ये भी कमा रहा है, तो कुछ तो है रिजल्ट आ रही है, तो फिर वो जाके देखेगा। मतलब हम्म, आपने उसको बोला नहीं कि जाके वीडियो देखो, लेकिन इनडायरेक्टली आपने उसको वही बोला कि भाई मैं इधर हूँ, कल हमारी बात हुई थी, जाओ अब वीडियो देखो आप। हम्म, मान लो हम्म, वो बिज़ी है अभी, वो ऑफ़िस में है या कहीं पे भी है, आप हम्म, स्टोरीज़ लगाओ। हम्म, जब वो अपनी स्टोरीज़ देखेगा, जनरली व्हाट्सएप पे ना 50-60 ही स्टोरीज़ लोगों के होते हैं। हम बिज़नेस में हमारे 400-500 व्यूज़ जाते हैं, 1000-2000 व्यूज़ जाते हैं और नॉर्मल लोगों के 40-50 ही जाते होंगे, ठीक है? हम्म, तो जब भी आप व्हाट्सएप स्टोरी लगाते हो, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, लाइक मोर देन 90% पॉसिबिलिटी कि वो आपका स्टोरी देखेगा। और स्टोरी हम्म, देख के भी उसके दिमाग में आया कि यार बंदे इसने तो मेरे कल इससे बात हुई थी मेरी, परसों बात हुई थी। हम्म, तो चलो उसका वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करेंगे ये पर्सन देख ले, बट उसके लाइफ में तो और भी काम है ना। मान और लो भी काम। ऑफिस में है, वो उसका कोई इवेंट चल रहा है, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो देख नहीं पा रहा है। जैसे हमारे 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 साथ होता है, हमें हाँ, क्रेडिट कार्ड वाला फ़ोन करता है, मे बी हमारे बेनिफिट के लिए फ़ोन कर रहा है, लेकिन हम हम्म, सुनते हैं, "अरे ये भाई रखो, नहीं सुनना, नहीं करना।" हम्म, और फिर हम्म, हम बोलेंगे, "भाई कल कर लो।" फिर कल वो फ़ोन करेगा, हम बोलेंगे, "यार फिर फ़ोन कर रहा है।" तो हमको ये चीज़ नहीं करना है कि डायरेक्ट डायरेक्ट आपको कॉल करना है, डायरेक्ट मैसेज करना है, "हेलो हेलो हम्म। ब्रदर आपने देखा नहीं।" डोंट इससे शो सामने वाला बंदा डेस्परेशन। हम्म,
इससे आपकी डेस्परेशन देखती है और सामने वाला बंदा ऑफेंड हो जाता है कि ये मेरे पीछे लग गया। तो आपको पीछे भी नहीं लगना है, आपको रिजल्ट शो करना है, जिससे वो आपके पीछे लगे कि यार इसने भेजा, मुझे देखना है ये वाली चीज़ें। तो दैट इज़ व्हाट यू कैन डू। और प्लस जब भी आप वीडियो प्रेजेंटेशन भेजते हो तो नीचे एक डेडलाइन डाल दो, ठीक है? हाँ, कि वही मैं प्लीज़ पूछ रहा था। रिवर्ट, हाँ, लाइक रिवर्ट मी विदिन 12 आवर्स, ओके, 12 घंटे के अंदर आप मुझे रिवर्ट करो, देन ओनली आई कैन हेल्प यू आउट। तो आप एक 24 घंटे या 12 घंटे जो भी आपको लगे आपके लिए वर्क कर रहा है, आप वो नीचे डाल दो, ताकि वो पर्सन उसको देखे। और आपका जो ड्राफ्ट है उसको जितना हो सके छोटा रखो, ठीक है? मतलब आपका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन डाल दो कि आप ये करते हो, मतलब जितना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उतना ही डालो, वीडियो का लिंक हो, और नीचे एक कॉल टू एक्शन डालकर उसको एक डेडलाइन दे दो। वेरी गुड। और ये जो चीज़ आपने ठीक, बोला इससे वॉइस आपकी नोट चांस भेजते बढ़ हैं, जाएगी। जो हाँ। वॉइस नोट भेजते हैं आप, जो मैसेज के बाद आप एक वॉइस नोट भेजते हैं, हुँ। एक एक या दो पॉइंट वॉइस नोट में होता क्या? वॉइस नोट में मैं ये कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो ये मुझे मैसेज पर्सनल कर रहे हैं मैसेज कि होता है, राइट? उनका नाम लेके आप बोलते हैं, या नहीं, 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 आपका नहीं। रिकॉर्डेड है वो फॉरवर्ड करते हैं? ये बस रिकॉर्डेड है मेरे, एक मेरा एक फ़ोल्डर बना हुआ है व्हाट्सएप पर ही, हम्म, ठीक है? या जो आपका खुद का ना, आपका व्हाट्सएप नंबर पे भी आप चैट कर सकते हो, खुद के नंबर पे भी। तो मैंने करेक्ट। उसको पिन करके रखा है, वहाँ पे डाल के रखा हुआ है। डालकर बस वहीं सब जितने आते हैं फॉरवर्ड मार देता हूँ सबको ऑडियो। तो ऑडियो में नाम नहीं लिखा, बस ऐसे हे लाइक आई रियली अप्रिशिएट दैट यू यू नो यू मैसेज मी एंड बिकॉज़ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ करके मैं उनको पहले अप्रिशिएट करता हूँ, फिर उनको बताता हूँ कि आपने मुझे कॉन्टैक्ट करा। तो आपके माइंड में हो सकता है कि बंदा पैसे कैसे कमा रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, कहीं स्कैम, फ्रॉड ये तो नहीं है, क्या एग्ज़ैक्टली है क्या चीज़? तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया है ऊपर, आप ये वीडियो देखो, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह मैंने बात की है, मैंने वहाँ पे अर्जेंसी भी क्रिएट करी है कि मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है वीडियो में। आप जाके सरप्राइज़ से लोग थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं कि क्या सरप्राइज़ है। आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, तो आप जितनी जल्दी हो सके वीडियो को देख के मुझे रिवर्ट करो, देन ओनली आई कैन हेल्प यू आउट, ओके? सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिवर्ट। इस तरह मैं कॉल टू एक्शन भी दे देता हूँ, तो इसलिए ऑडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मेरी जो ऑडियो वो 1 मिनट कुछ सेकंड की है, तो अच्छा। सेल्स करते वक्त जब आपका वीडियो देख लेता है, वो आपको आता है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शंस उसके बाद होता है कि जब एक बार वीडियो देख लिया, तो सेल्स इज ऑल अबाउट हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। हुँ। ऑब्जेक्शन तो आएंगे ही आएंगे, बहुत कम, हुँ, ऐसा हुँ। रेयर 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 कोई होगा कि बिना ऑब्जेक्शन का आपसे परचेस कर लेगा। ऑब्जेक्शन हुँ, होता हुँ। है, तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू हैंडल ऑब्जेक्शन। एक या दो ऑब्जेक्शन जो आपको बोलेंगे जो मोस्ट कॉमन है, सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन क्या आता है, क्वेश्चंस क्या आता है? सबसे कॉमन देखिए, अब जो 2 ही होते हैं, एक होता है पैसे नहीं है और दूसरा होता है कि कहीं स्कैम फ्रॉड तो नहीं है, अच्छा, एंड हाउ डू यू ठीक है? रिप्लाई? अब जो कहते हैं कि पैसे नहीं है, तो मैं मेरा एक ऑडियो बनी हुई है 2 मिनट की, ठीक है? अब वो ऑडियो ऐसा बना हुआ है ना कि जो बंदा पैसा बोलता है कि भाई मैं मुझे नहीं करना, पैसे नहीं है, मैं और जब ऑडियो भेजता हूँ ना, वो बंदा एकदम पोलाइट हो जाता है। हाँ सर, बिल्कुल मैं अरेंज करूँगा। मतलब वो ऑडियो सुनने के बाद ना वो इस पे आ जाता है कि हाँ, मैं अरेंज करके आपको कॉन्टैक्ट करता हूँ, और फिर वो अरेंज करता भी है। मैं उसको यही कहता हूँ कि देखो यार, पैसे आपके पास आज नहीं है, नहीं, पैसे आपके पास कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है और कल भी नहीं रहेंगे। अगर आप आज कुछ डिसीजन नहीं लेते हो, आज एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, अगर आज आप नहीं डिसीजन ले रहे हो, आप कैसे कह सकते हो कल आपके पास पैसे रहेंगे? फिर थोड़ी-सी इमोशनल लाइन्स उसमें मैंने डाला है। इफ यू वांट मैं आपको वो ऑडियो सुना सकता हूँ। सुनाइए, जो डेफिनेटली रिकॉर्ड भी हो हाँ, मैं जाएगा तो सुना सब सकता लोग हूँ। उस। हम्म, नहीं, आई एम ओपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सुना दे रहा हूँ, नो मनी करके। स्क्रिप्ट। या ओके, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आपके पास कल पैसे नहीं थे, आपके पास आज पैसे नहीं है। तो इसकी क्या गारंटी है कि कल आपके पास पैसे होंगे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए? मैंने इस बिज़नेस में ना, इस जर्नी में बहुत लोग को देख लिया है। अगर आपके पास पैसे आज नहीं है ना, तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ कि पैसे आपके पास कल भी नहीं रहेंगे स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि यार देखो, आज आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि आपने पास्ट में कुछ अच्छा काम नहीं किया या पास्ट में ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी वजह से आज के डेट में आपके पास पैसे हों। और आज जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, फिर से आप वही चीज़ कह रहे हो, पैसे नहीं है। तो आज आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कल भी आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, ठीक है? तो एक और एग्जांपल्स मैं बताता हूँ। मान लो आप हम यंगस्टर्स के सबसे प्यारा चीज़ क्या है हमारा? हमारा फ़ोन, ठीक है? हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम दिन के 5-5, 6-6 घंटे फ़ोन पे निकाल देते हैं आराम से, 4-5 घंटे, ठीक है? मान लो अगर आपका फ़ोन खुदा ना खास्ता आज टूट जाए या गिर जाए, खराब हो जाए, तो यार फ़ोन इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है ना कि आप कल ही जाके ना एक नया फ़ोन लेके आओगे। अगर नया फ़ोन नहीं ला पाओगे तो कम से कम आप ये फ़ोन को बनाने दे दोगे, चाहे 2000 4000 लगे, आप कहीं न कहीं से अरेंज कर लोगे, पापा से माँगोगे, दोस्त से माँगोगे, कहीं न कहीं अरेंज कर लोगे। तो मेरे भाई, अगर आप फ़ोन के लिए इतना सीरियस हो सकते हो, तो यार जब बात आपके करियर के लिए आई है, जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो, जहाँ पे आप अपनी अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकते हो, अपनी फैमिली को खुश कर सकते हो, अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो, वहाँ पे सीरियस नहीं हो रहे हो। भाई अगर यहाँ पे सीरियस नहीं होगे तो क्या ही करोगे?
आज एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, इसको ग्रैब करो। पैसे नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसे मेरे पास भी नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया, बट मुझे ये समझ में आया कि बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बहाने लगाऊंगा तो जिंदगी भर बहाने लगाते रह जाऊंगा। मैंने पैसे लिए किसी से, 2 से उधार मांगे, अरेंज किए, कुछ पैसे अपने पास से लगाए और बिजनेस स्टार्ट किया, तब जाके मैंने 18 लाख कमाया। तो यार सिंपल सी बात है, बहाने सब बना दो, बहाने सबके पास है, इसीलिए सब पीछे रहते हैं। कुछ लोग आगे निकलते हैं क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक्शन लेते हैं। आई वॉन्ट कि आप भी अपने बहानों को पीछे छोड़ के एक्शन लो, मेरे लिए नहीं, कंपनी के लिए नहीं, अपने लिए, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको, अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को खुश कर सको, अपने करियर में आगे बढ़ सको। ठीक है, इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी भाई तुम्हारे ऊपर है, आपके ऊपर है। अगर आप सीरियस हो तो आप अरेंज कर लोगे। That's it. तो ये ऑडियो सुनने के बाद सामने वाला बंदा चाहे जितना भी ऑफेंड हो, पैसे नहीं है, जितना भी अगेंस्ट हो, वो आके यही बोलता है कि मैं पैसे अरेंज करूंगा, भैया मैं पैसे अरेंज करूंगा, सर मैं पैसे अरेंज करके आपको कांटेक्ट करता हूँ, फिर वो अरेंज करके मैसेज भी करता है। ओके, दूसरा ऑब्जेक्शन था स्कैम वाला, उसको कैसे रिप्लाई करते हैं? स्कैम का तो बहुत इजी हो गया है। स्कैम का तो मैं वो यही कहता हूँ, मैं उनको यही कहता हूँ, देखो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि कंपनी जो है ना, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। सारे प्रूफ्स मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आप सारे प्रूफ्स देख लो, ठीक है, मेरे हाईलाइट्स में लगे, आप देख सकते हो। और कंपनी को 3 साल हो गई है, तो कंपनी बिल्कुल लीगल है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। ये कोई एरा गैरा एप्लीकेशन नहीं है जो आज के डेट में आपको प्ले स्टोर में मिला, कल गायब हो गया, ठीक है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है। आपके माइंड में कंपनी को लेकर डाउट था, जो कि क्लियर हो चुका है। अब दूसरा डाउट आपके माइंड में ये आ सकता है कि कहीं मैं आपके साथ स्कैम या फ्रॉड ना करूं, ठीक है, क्योंकि आज के डेट में आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि आज के डेट में स्कैम फ्रॉड होता है, बिल्कुल सही बात है। बट ये चीज आप समझो ना कि अगर मैं स्कैम या फ्रॉड कर रहा होता, क्या कभी आपने किसी को देखा है स्कैमर्स को कि वो खुलेआम अपनी फेस रिवील कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी सोशल मीडिया पे रिवील कर रहे हैं? ये और नो, वो सामने बोलता है नो, ऑब्वियसली बात है नहीं, वो छुप के करते हैं। एग्जैक्टली जो स्कैम या फ्रॉड करते हैं ना, वो छुप कर करते हैं, वो टेलीग्राम यूज करते हैं, वो कभी भी अपनी फेस को, अपनी लोकेशन को, अपनी चीजों को रिवील नहीं करेंगे। हम क्यों रिवील करें? क्योंकि जेन्युइन है, हमें पता है कि सब चीज गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, इसमें कोई केस नहीं बनेगा, कुछ स्कैम नहीं है। सामने वाला बंदा वो एग्री कर जाता है कि हाँ आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि जो स्कैम करता है वो छुप कर करता है, वो खुलेआम नहीं करता है। बस स्कैम यहीं से हैंडल हो जाता है। और ये वाली लाइन है ना कि मैं जब कहता हूँ कि फेस, हम अपनी फेस दिखा रहे हैं, स्कैमर छिप के करते हैं, आइडेंटिटी आप खुद दिखा रहे बताओ। हैं, हाँ। हाँ, आप खुद बताओ, स्कैमर्स कभी ओपनली करते हैं? वो नहीं, छुप के करते हैं। तो यहीं से मेरा ये वाला ऑब्जेक्शन डन हो जाता है, सामने वाला बंदा एकदम ट्रस्ट करके स्टार्ट कर लेता है। तो ये दो मेजर ऑब्जेक्शन है। इसके अलावा जो आते हैं वो तो बस मतलब वो मेजर यही होता है कि उनको डाउट होता है माइंड में। और बहुत लोग जो होते हैं डर रहे होते हैं, तो मैं उनसे खुद पूछता हूँ, भाई आप खुल के बताओ ना। मैं एकदम ओपनली बिजनेस करता हूँ कि मतलब खुल के कंफर्टेबल फील करा के, ये नहीं कि भाई करना पड़ेगा, आज नहीं करोगे मेरे टीम में मैं नहीं दूंगा, ऐसे मैं ऑफेंड नहीं करता उनको, प्यार से कि देखो अगर आपको डाउट, कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं लेकिन उनके बातों से लग जाता है कि उनको अभी भी डाउट है। मैं उनको खुद सामने से पूछता हूँ कि आप खुद ब खुद बताओ मुझे कि आपको स्टिल कुछ ना कुछ डाउट है, आपके मन में डाउट चल रहा है कि स्कैम ना हो जाए, पैसे ना डूब जाए, राइट? मैं उनको वही कर रहा हूँ, देखो यार यहाँ पैसे डूबते नहीं है, ये आपका अफिलिएट मार्केटिंग है, यहाँ पैसे डूबते नहीं है। यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे, 4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में आप कमाओगे कमाओगे, चीजों को फॉलो करोगे। पैसे आपके डूबते हैं ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी, जहां पर आप ये सोच के लगाते हो कि पैसे डबल हो जाए और पैसे आपके चले गए, डूब गए। आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसे डूब गए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 हफ्ते में कमाओगे, लोग ऐसे भी हैं जो 4 दिन में कमाते ही कमाते हैं, बट या हो सकता है कि आप 10 दिन में कमाओ, आप 15 दिन में। मेरे टीम में ऐसे भी हैं जो फर्स्ट डे आके भी कमाए, ठीक है, हाँ, तो मैं कुछ उनको लोग ऐसे भी कमिट नहीं जिनको करता हूँ। महीना लग जाता है, 1 महीना, 20 दिन, हाँ, 25 दिन में पहला सेल किए होंगे, ऐसे भी पहला है। सेल किया, तो मैं उनको वही कहा कि ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे हर कोई कमाता है, बस टाइम वेरी करता है। मैंने जब इंटरव्यू करवाया था ना, ये हमारा हॉल ऑफ फेम ये सब, तो यहाँ बहुत सारे अचीवर्स ऐसे भी आए हैं जो 5-6 लाख आज के डेट में कमा चुके हैं, 7 लाख कमा चुके हैं, इवन 1 मिलियन कर चुके होंगे, बट उनकी फर्स्ट अर्निंग 20 दिन बाद, 1 महीने बाद आई है, या फर्स्ट अर्निंग 20 दिन में आ गई, फिर दूसरी अर्निंग 1 महीने बाद आई है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो प्रोसेस है, डाउन द लाइन हो जाती है चीजें। तो ये इट्स इस तरह मैं ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करता हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपके हम्म, अपने अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है ना, तो आज नहीं तो सेल्स, कल तो सेल्स होगा ही होगा। सिंपल सा चीज बिल्कुल है। बिल्कुल। और मैं तो एक रामबाण देना चाहता हूँ सबको कि जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो ना, तो बी पोलाइट, है ना। होता क्या है ना, सामने लोग 2 ऑब्जेक्शन पूछता है तो आप ऑफेंड हो जाते हो, या फिर आप हाँ, गुस्सा हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो गुस्सा जाते हो हो जाते हैं, कि यार फ्रस्ट्रेट हो जाते आपको लगता है कि ये बंदा लेगा नहीं। मेरे को बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि बंदा तो फेक है, ये लेगा ही नहीं, डीपी नहीं है, ऐसे टाइम पास कर रहा है, बट वो ले लेता है हैं। जस्ट बिकॉज मैं उनसे प्यार से बात किया हूँ या फिर अच्छे से बात कर रहा हूँ, तो वो ले लेता हूँ। और एक और चीज है, लीड्स को ना फास्ट रिप्लाई करो, फास्ट, ठीक है। कि आप बहुत लोग ये सोचते हो कि लीड्स को हम जल्दी रिप्लाई करेंगे, वो सोचेंगे कि ये डेस्परेट है, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप लीड को फास्ट, क्योंकि देखो मैं एज अ पर्सन जा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी में मैं रहूँ, आप मुझे तुरंत रिप्लाई करो। अगर आप लेट करोगे तो मैं खुद ऑफेंड होगा कि मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी, या फिर लगता है कि ऐसा होगा बट ऐसा होता नहीं है। आप तुरंत रिप्लाई करो, लीड आपको खुश रहेगा कि हाँ ये तुरंत रिप्लाई कर रहा है। जो फ्रेश लीड आ रहा है ना, उनको जितनी फास्ट रिप्लाई करोगे उतनी जल्दी वो क्लोज होता है। करेक्ट। और आपको अपना सिस्टम बनाना होगा कि ज्यादा से ज्यादा लीड आए।
अगर एक या दो लीड पे ही आप काम करते रहोगे, वो दोनों ना बोलेगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए ही होगे। तो आपको एक सिस्टम बनाना होगा कि कंटिन्यूअस लीड्स प्रोसेस आता रहे। और अगर कोई कस्टमर बोल रहा है या कोई लीड्स आपको बोल रहा है कि मुझे नहीं करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, आप दूसरे लीड्स पे एग्जैक्टली काम करो, आप दूसरे लीड्स पे काम करो, कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। और कोई अगर कहता है ना कि नहीं करना तो प्यार से उनसे पूछ लो। मैं जब कोई मुझे कहता है ना आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो प्यार से उससे पूछ लो कि ओके सो ओके इट्स योर विश, और वो एक इमोजी आती है ना ऐसे करके स्माइल वाली, और दिल लगा दो, बहुत मतलब उससे पॉजिटिव आपका वाइब जाता है। और फिर उससे पूछ लो कि मे आई नो द रीजन जस्ट फॉर द फीडबैक, आई जस्ट आई वांट टू नो द रीजन। तो मुझे कई बार लोगों ने कहा कि पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है मुझे पता चल गया इसका मेन रीजन यही है, पैसे नहीं है। बस उसको मैं वो नो मनी वाला ऑडियो भेज देता हूँ, जो देख के आज नहीं तो कल 2-4 दिन बाद वो कर लेता है। ओके, बी वेरी पोलाइट, गुड। बी पोलाइट। मैं एक चीज कहूंगा कि बी पोलाइट टू एवरीवन, डोंट गेट ऑफेंड। आप एक बिजनेस में हो, एक चीज कह रहे हो, सो और ये कहीं ना कहीं आपका एक ये भी एक स्किल है, कि गुस्सा नहीं करना, चीजों को मैच्योरली हैंडल करना। इट इज ऑल्सो स्किल जो आपको डाउन द लाइन लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सर, कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके कमेंट में लोग आके उल्टा सीधा लिखेंगे कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ये बंदा ये करता है वो करता है। कमेंट्स जब पोस्ट करते हैं ना, लोग आके लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता था ना, पहले मैं इनको रिप्लाई कर देता कि भाई तुझे ज्यादा पता है क्या, ये है वो है। मैं वो दो आप चार और रिप्लाई ज्यादा लिख भाव देता। दे रहे हो उसको। एग्जैक्टली अब मैं क्या करता हूँ, मैं समझ गया यार, जब मैं इसको रिप्लाई करूंगा, देखो वो बंदा आके लिख रहा है कि मैं बैंक प्रूफ दिखा रहा हूँ लाइव, वो बंदा आके लिख रहा है ये सब झूठ है। अब मैं क्या मैं दो सोचा कि भाई मैं इसको प्रूव करने जाऊँ कि ये मैं झूठ मैं दिखा रहा हूँ, मैं सच दिखा रहा हूँ, तो बिलीव हो रहा है ये बंदा बेवकूफ है, इसने कुछ देखा नहीं, इसको एक्चुअली इसको क्या हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि इतना हम कर भी डाइस सकते हैं, बिलीव कर नहीं आ सकता रहा, है। बिलीव नहीं आ रहा। मैं अब कुछ नहीं करता, मैं बस क्या करता हूँ, कमेंट में जाता हूँ, उसका कमेंट डिलीट कर देता हूँ। दैट्स डिलीट इसलिए करता हूँ ताकि कुछ 10 लोग देखेंगे, फिर उनको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो लिखा है कि ये, और लोगों का नेगेटिव में ज्यादा फोकस जाता है, इसलिए मैं बस डिलीट करता हूँ। मैं उसको ना मैसेज करता हूँ ना कुछ। अगर मैं उसको एक मैसेज करा, उसने 2 मैसेज करा, मैं 3 करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाह के तो अपने मेरे आप पास 10 लोग इंगेजमेंट हैं। बढ़ा रहे हो ना उसके कमेंट पे। हाँ आप उसके एग्जैक्टली कमेंट पे इंगेजमेंट बढ़ा रहे हो और उसके वजह से वो निगेटिव ज्यादा इंप्रेशन बनता है। तो सबसे बेस्ट चीज है कि आप इग्नोर करो, एंड सेकंड चीज है इग्नोर कि आप करो, उसको डिलीट कर दो, बस। डिलीट कर दैट दो। इज द मैं बेस्ट बिल्कुल थिंग। टाइम वहां पे बिल्कुल हाँ। टाइम स्पेंड नहीं करता, बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करता। कुछ लोग आते से करता है, मैं सीधा उनको ब्लॉक, अगर वो ज्यादा एक दो बार करे मैं डिलीट कर दिया, ज्यादा कर रहे हैं तो उन बंदे को ब्लॉक करके डिलीट करो, क्योंकि आपका एनर्जी, आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। आपका टाइम इन पे देने के लिए थोड़ी ना है, जितना अपना दिमाग खराब करोगे इन पे देके, उतनी देर में आप कमा लोगे। आपको पता है कि ये लीगल है, जेन्युइन है, और क्या चाहिए। अब जो लोग कहते हैं फ्रॉड, उनका एक ही रीजन है भैया, कि जो कहते हैं कि फ्रॉड है, स्कैम है, ये उनका एक ही है, उनको यकीन नहीं हो पाता कि इतना कमाना पॉसिबल है। उनका पॉइंट एक ही होता है कि इतना आसान होता, सब यही कर रहे होते। वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि मैं हाँ नहीं कर रहा हूँ ना, तो मैं बहुत सही कर रहा हूँ। तो वो मैं बहुत अपने आप सही को कर रहा हूँ। जस्टिफाई करने के लिए वो सब कमेंट डालते हैं। वो आपको वीडियो शेयर करेंगे, किसी ने 1 साल पहले 2 साल पहले किसी ने वीडियो बनाया होगा कि ये प्लेटफॉर्म स्कैम है, वो वीडियो जाके ढूंढ ढांड के निकालेंगे, उसको लाके आपको शेयर करेंगे। वो सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए और कुछ भी नहीं। वो अपने आप को जस्टिफाई बिल्कुल, करवाने की कोशिश करते हैं। वो एक्चुअली वो एब्सोल्युटली आपको एब्सोल्युटली। गलत नहीं बोल रहे, वो अपने आप को सही प्रूव करना चाह रहे हैं, बस। बिल्कुल, बिल्कुल। सर यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बड़ी प्रॉब्लम आती होगी। आपके लीड्स आपको जाके सर्च करते होंगे यूट्यूब पर, वहाँ पे उनको 1-2 स्कैम वाली वीडियो मिलती होगी जो लोगों ने बनाया होगा। तो आप जैसे ही वो वीडियो आपको मिलती होगी, आप वहाँ पे डाउन हो जाते हो कि ये बंदा ये सेल गया हाथ से। ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ, मेरे को ना 10 में से 90% स्ट्राइक रेट चल रहा है। जो 10 लोग मुझे भेजते हैं ना वो वीडियो, 99 लोग को मैं उसमें क्लोज कर देता हूँ, 90% को। कैसे? मैं उनसे सीधा बात करता हूँ। देखो इतना समझ लो, कोई पर्सन अगर आपको स्कैम वाली वीडियो भेज रहा है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, वो सीरियस है, इसलिए जाकर उसने चेक करा, इसलिए जाकर उसने रिसर्च करा है। जो मैं भी अगर होता, मैं भी जब कुछ चीज को रिसर्च करता, ठीक है, तो मुझे वो वीडियो मिली, किसी को मिली, उसने आके मेरे को शेयर करा, मैं समझिए ये बंदा सीरियस है। अब मैं उसको डायरेक्टली कॉल पर लेता हूँ, मैं बोला अरे मैं पहले हंस के मजाक में था, अरे भाई तुमने भी ये वीडियो भेज दिया, आज तुम्हें बताता हूँ, ये यार ये लोग सिर्फ बस अपने व्यूज बढ़ाने के लिए करते हैं। अब मैं तुमको एक सारी चीजें बताता हूँ, तुम कॉल पर आ जाओ, कॉल पे कनेक्ट करने के लिए फ्री हो? तो बोलेगा हाँ। तो मैं उनको सीधा बताता हूँ, देखो भाई एक एक चीज समझो, ये जो बंदा है ना, इसके आप सब्सक्राइबर देखो कितने हैं, 7,000 8,000। मैंने कहा भाई अगर ये स्कैम सच में होता तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों में सब्सक्राइबर्स है, वो नहीं बना रहे होते क्या? अभी देखो यार, सिंपल सी बात है, सबको क्या चाहिए? सबको बेनिफिट चाहिए, सबको चाहिए यूट्यूब पर व्यूज। आप खुद बताओ, नेगेटिव टीआरपी का कितना ज्यादा व्यू होता है? अगर कुछ नेगेटिव आ जाए, तड़का लगा हुआ है, सीरियल में कुछ तड़का लगा कर टीआरपी बढ़ जाए, तो नेक्स्ट डे सब बैठ के देखते हैं। कुछ भी टीआरपी आ जाती है नेगेटिव, मीडिया आपको टीआरपी की, यहाँ पे बम गिरा, रसिया ने गिराया, यहाँ यूक्रेन में बम, और होता कुछ भी नहीं है। तो ये टीआरपी के लिए वो इस तरह करते ताकि उनका व्यू आए। और आप जाके, मैं ये ऑनेस्टली बोलता हूँ, ये होता भी है। आप जाओ उनकी चैनल पे, देखो कितने सब्सक्राइबर्स हैं, जाके देखो उनके बाकी वीडियोस पे कितने व्यूज हैं। वो वीडियो 200 बनाने से 400, पहले कितने व्यू थे। हाँ। हाँ 200-400 व्यूज, 1000-2000 व्यूज उन बाकी वीडियोस में। और इस वीडियोस में जो लीड का स्कैम वाला वीडियो, इसमें 40,000 1 लाख व्यूज। आप समझ रहे हो? इस बंदे की एक ऑथोरिटी होनी चाहिए ना। अब बताओ यार,
अब तुम रास्ते में चले जाओ, कोई अंकल दादाजी मिल जाएंगे मोटे से जो कभी क्रिकेट खुद नहीं खेलेंगे, वो भी कभी देखना सचिन को बैठ के गाली दे रहे होंगे विराट कोहली को, किसको ऐसे खेलना चाहिए। तो भाई यहाँ पे सबको फ्री का एडवाइस देना आता है। आप ये बताओ, अगर सच में आप किसी से जानना चाहोगे तो उस बंदे की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। एक बंदा जिसके 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जिसके बाकी व्यूज चैनल व्यूज ही नहीं गए हैं, वो अपने सब व्यूज के लिए कहता है, वो और उस आपके हेल्प के फील्ड लिए में क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। आप सपोज कोई एग्जैक्टली दूसरे फील्ड में है जिसको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं, ऑनलाइन बारे में जो भी लोग, एक दो लोगों ने जिसने भी वीडियो बनाया उसने कभी लीड सार का कोर्स खरीदा नहीं, कभी उसने लीड सार के कोर्स में अंदर जाके देखा नहीं कि लीड सार के कोर्स में है क्या, बस ऊपर ऊपर से बना दिया वीडियो। तो व्हाट इज द भाई। क्रेडिबिलिटी, यही चीज सोचना चाहिए उन लोगों को। और मैं एक क्वेश्चन फिर उनसे पूछता हूँ कि ब्रदर आपने पूरी वीडियो देखी है राइट, आप मुझे एक दो पॉइंट बताओ जो इसमें आपको इस बंदे की बात सही लगती है। तो मोस्ट ऑफ द केस कोई बता ही नहीं पाता, और कोई बताता भी है ना कि कोर्स की क्वालिटी सही नहीं है ये, तो मतलब भाई इस पर्सन ने कोर्स की क्वालिटी देखी है, और कोर्स की क्वालिटी को हम कैसे जज करेंगे? रिजल्ट से राइट। आप इस कॉलेज को कैसे जज करते हो, कॉलेज अच्छी है खराब, उसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड से। आप यहाँ देखो, यहाँ पे लोग इतने लाखों कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं? वो कोर्स से सीख के तो कमा रहे हैं ना, कोई तो सीख कर यहाँ पे नहीं आया, सब तो सीख कर ही कर रहे हैं। तो वो आपकी एक पैरामीटर होता है जिससे आप जज कर सकते हो कि प्लेटफॉर्म की क्या क्रेडिबिलिटी है। तो वहां बंदा बोलता है हाँ आपकी बात तो सही है, तो मैं उनसे खुद पूछता हूँ, मैं उनको पहले एक्सप्लेन करके उनसे खुद पूछता हूँ, उनको भी मौका देता हूँ कि आप मुझे बताओ कि इस पर्सन, जो भी पर्सन ने वीडियो में बताया, उसमें सुनने के बाद आपको क्या चीज सही लगा कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है। फिर ताकि मैं पकड़ता हूँ कि इस बंदे के माइंड में एक्चुअली ऑब्जेक्शन है क्या, फिर ऑब्जेक्शन को मैं हैंडल कर देता हूँ, वो बंदा पूरा न्यूट्रल हो जाता है कि हाँ सर आप सही बोल रहे हो, मुझे करना है। वेरी गुड, सुपर। तो अब क्या करते हैं कि दो तीन क्वेश्चंस लेते हैं ऑडियंस से, ज्यादा नहीं करेंगे, जस्ट दो तीन क्वेश्चन करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सही में प्रॉपर मतलब क्या बोलते हैं ना, प्रॉपर अगर क्वेश्चन है तो मैं चैट ऑन कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप अपना क्वेश्चंस वहां लिख सकते हैं। और जिसका भी क्वेश्चन सही लगेगा, मतलब बोलने का मतलब कि अगर आप बोलोगे मेरी सेल्स नहीं आ रही मैं क्या करूँ, ये क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आपकी सेल्स नहीं आ रही है, आप जाके कोर्स देखो, वहां प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज हैं, आपको वो देखना है, उसको फॉलो करना है, इंप्लीमेंट करना है, काम करना, राइट। तो दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। मेरी लीड जनरेट नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। अगर आप एक अच्छे क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे तो मैं आपको लाइव लेके आऊंगा कैमरा पे, आपका वीडियो ऑन करवा के, और फिर मैं आपसे बात करूंगा और आपके डाउट को क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं चैट ओपन करता हूं पहले। यस, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आप विकास से पूछना चाहते हैं, समथिंग टेक्निकल, समथिंग इंपॉर्टेंट, और जो आपको हेल्प हो, हेलो लो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बस क्वेश्चन लिख दीजिए। डेली एड बजट मेरी लगभग वही 700-800 आप समझ लो। हम्म, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर नहीं, मैं इंस्टाग्राम पे जो एड रन करता हूँ वो प्रोफाइल विजिट की एड होती है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर नहीं, क्योंकि देखो व्हाट्सएप पर आप लेके आओगे, सामने वाला बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट आएगा आपका नंबर ब्लॉक करेगा। तो एटलीस्ट वो मेरी इंस्टाग्राम से घूम के आएगा, तो चेक वेक करके आएगा, तो ज्यादा चांसेस होता है क्लोज होगा। अच्छा, किसी का एक क्वेश्चन है, अयान अंसारी, वो बोल रहे हैं कि लीड्स बोलती है कि मेरे पैसे आप लगा दो, तो इसको आप कैसे हैंडल करते हैं? मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखो यार ये चीज जो है ना, एक्चुअली मैं इनको ज्यादा एंटरटेन करता नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं जो कहते हैं। मैं बोलता हूँ देखो यार एक बात समझो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ठीक है, अगर आपने कोई दुकान खोला या आपके पापा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मान लो आपके पापा, मैं पूछ लेता हूँ पापा करते क्या है, तो कोई कहता है कि ये दुकान है, तो मैं कहता हूँ कि अगर मान लीजिए आगे पापा का ये चाय का दुकान है, वो भी है, तो कोई आगे कहेगा कि मुझे चाय चाय फ्री में पिला दो, तो आपके पापा रोज को चाय के फ्री में पिलाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं कहता हूँ कि आप एक बात बताओ, आप जो कह रहे हो कि मुझे पैसे मैं लगा दूं, कि ये सेम चीज जब आप कॉलेज में स्कूल में पढ़ने जाते हो तो करते हो। आप कॉलेज में 4 साल पढ़ने गए, बोलोगे कि जैक मुझे 4 साल पढ़ा दो, जब मेरी जॉब लग जाएगी फिर मैं आपको 4 साल मतलब तब मैं पैसे कमा के आपको दे दूंगा, क्या ऐसा पॉसिबल होता है? सामने बंदा खुद ही बोलेगा कि नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो? तो यहाँ पे वो बंदा समझ जाता है कि हाँ ये चीज क्या है। और अगर कोई फोर्स करता है, मैं अपना सीधा बोल देता हूँ कि ये हमारे पॉलिसी के अगेंस्ट है कि हम इस तरह किसी के पैसे लगा नहीं सकते हैं। अगर मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं सब बॉस समझाने के बाद भी पीछे लग जाते हैं, तो मैं सिंपल ये कह देता हूँ कि पॉलिसी के अगेंस्ट है, वी कैन नॉट डू। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि लीड को प्रो कोर्स के लिए कैसे सजेस्ट करें? प्रो के लिए कैसे सजेस्ट करें? देखो आपको वैल्यू दिखाना पड़ेगा, किसी भी चीज के लिए ना वैल्यू दिखानी पड़ेगी। आप उनको देखो बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनको ये बताओ कि प्रो में बेनिफिट क्या है। आपको प्रो में जो कोर्सेज मिल रहे हैं, देखो आप खुद कोर्स जाके देखोगे ना, जो प्रो में जो कोर्सेज है ना वो सच में प्रीमियम कोर्सेज हैं। ठीक है, प्रो में जो आपको आई थिंक 11 जो कोर्सेज मिल रही है वो प्रीमियम कोर्सेज हैं। आपको स्टैंडर्ड में 7 मिल रही है, लाइट में 6 मिल रही है, बट जो प्रो वाली कोर्सेज प्रीमियम है। आप अगर एक बार प्रो ले रहे हो तो आपको 24 कोर्सेज का एक्सेस मिल जा रहा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपकी अर्निंग ज्यादा होगी प्रो में। ठीक है, देखो आप यहाँ पे आ रहे हो कि एक बड़ा पर्पज से आ रहे हो, एक बड़े विजन से आ रहे हो। ठीक है,
आप छोटे से स्टार्ट करोगे, आपकी अर्निंग भी छोटी होगी। जब आपका विजन इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली आप अगर बेस्ट से स्टार्ट करोगे, एक वर्ड है मेरा, बेस्ट टू बेस्ट, ओके। आपको अगर बेस्ट बनना है तो बेस्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको बेस्ट बनना है तो बेस्ट से स्टार्ट करेंगे, तभी आप ग्रो करोगे। और मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि देखो, मैंने प्रो से स्टार्ट करा, इसलिए मैं इतना ग्रो कर रहा हूँ आज के डेट में। और जितने भी लीड्स आपके टॉप अफिलिएट है जो आज के डेट में धमाका कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, सब कोई प्रो से स्टार्ट करा और आज के डेट में प्रो में है। ठीक है, ये आप बताओगे, ये 2-3 लाइन बता दोगे ना, सामने बंदा खुद समझ जाएगा कि हाँ यार, जो ग्रो कर रहे हैं प्रो में, तो कुछ तो बात है प्रो में। ये चीज कर सकते हो। प्लस आप उनको बता सकते हो, देखो प्रो में वन टाइम है, ठीक है। और अभी स्टैंडर्ड की प्राइस 4000 है। आप दोबारा प्रो में जाओगे, दोबारा पैसे लगाने पड़ेंगे, आपके पैसे ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। अभी में भी आपको लग रहा होगा कि मैं लगा दूंगा, लेकिन जब पैसे पॉकेट से जाएंगे ना, फिर आपको दर्द होगा उस समय। तो इससे बेटर है आप एक टाइम लगाओ, आपकी छुट्टी हो गई, आप टॉप पर आ गए, आप सारे प्रोडक्ट को अफिलिएट कर सकते हो। आपकी उसके बाद 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है। और और फिर इनकम फ्यूचर भी में ज्यादा। इनकम भी ज्यादा, फ्यूचर में प्राइस भी बढ़ जाएगी, ये भी डाल सकते हो। इससे पहले प्रो की प्राइस कम थी, फिर अब बढ़ के अभी 10,000 हो गई है, तो फ्यूचर में बढ़ सकती है प्राइस। तो ज्यादा हम्म, प्राइस देने का क्या ही मतलब है। जैसे हमने जब हम्म, स्टार्ट करा था तो प्राइस 8,000 थी, हमने 8,000 दिया, और आज 10,000 है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा लगा नहीं। तो अगर आप आज स्टार्ट करते हो 10,000 में, कल इसकी प्राइस मान लो 15,000 भी होती है, तो आपको 5,000 नहीं देना पड़ेगा। वो आपको बाय डिफॉल्ट सारे अपडेट मिलेगा, क्योंकि लीड कमिट करता है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो आप अगर वन टाइम कर दियो, तो उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं, प्रोवाइडर अगर आप प्रो में हो। अगर आप छोटे पैकेज में हो तो अपग्रेड करने पे, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये चीजें आप उनको बोलोगे, 3-4 चीजें। और ट्राई करो उनसे बात करने की, उनकी क्या प्रॉब्लम है। आप सबको आप प्रो में पिच नहीं कर सकते ना। अगर कोई पर्सन है जिसका स्लाइड के पैसे हैं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड पिच कर सकते हो। अगर कोई पैसे ही नहीं है, उसको कितना ही प्रो में पिच करोगे। तो ये चीज आपको एनालाइज करना है सामने वाले बंदे से बात करते हुए। और मैं सबको एक ही चीज रिकमेंड करना चाहूंगा इनिशियल लेवल पे, एवरीवन ट्राई टू मेक अ कॉल, ओके एवरीवन। आप व्हाट्सएप पे क्लोज करने की ट्राई मत करो, आप कॉल पर जाओ। आपसे रिजेक्ट होगा कोई दिक्कत नहीं है, आपको नर्वसनेस हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, बट डाउन द लाइन वही चीज आपको बहुत ज्यादा तभी इंप्रूव आप देगी। सीखोगे ना, तभी आपको वो आपका जो भी नर्वसनेस हो रहा है या जो भी आपके अंदर वीकनेस आ रहा है उसको आप ओवरकम कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं आपको बात बता रहा हूँ, लाइक इनिशियल डेज में ना, जब मैं कॉल पे जाता था, तो आई यूज टू गेट प्रिपेयर्ड। लाइक कॉल पे जाना है मेरे को किसी लीड से ना, आई यूज टू गेट प्रिपेयर्ड कि फोन सेट है, हेडफोन लगा लिया, कान पे सेट है, कोई काम नहीं करना है, फुल फोकस। अच्छा, और नर्वस होती थी एकदम, जैसे घंटी बजती थी ना फोन की, अच्छा उठाया, हेलो। तो इस तरह का मतलब एकदम कॉन्शियस बात करता है, कॉन्शियस मतलब मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। फिर आज के डेट में अगर बताऊं ना, आज के डेट में फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता है कॉल आ रहा है, डायरेक्ट कॉल आता है, मैं लेटा भी हूँ ना, सोया भी हूँ ना, आराम से बात कर लेता हूँ। बगल मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ, मैं अपना लिख भी रहा हूँ, मैं बात कर लेता हूँ बिंदास, सब बंदे को क्लोज भी कर देता हूँ कॉल पे। तो वो ठीक वो है, वो आपका पोजीशन इतना से, दिन से प्रैक्टिस हुआ, ऑब्वियसली एवरीबॉडी स्टार्ट एट नहीं दैट नहीं, लेवल। बट ऑब्वियसली लोगों को, हाँ, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, कि देयर वाज अ टाइम जब मैं डर डर के बात करता था, बट हाँ, आज यहाँ पहुंच चुका हूँ। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से, कि आपको भी इनिशियल लेवल पे थोड़ा डर लगेगा कि कैसे हो रहा है कॉल पे, बट उस डर को फेस आप डर, करो। उस एक डर दो, को फेस करने का एक ही तरीका है कि आप प्रिपेयर्ड होइए। तो जो आपको पता है कि क्या क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछेगा, आप उस आंसर को प्रैक्टिस करके रखिए। जितना प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना ज्यादा ये होगा। तो आपने जो शुरू में किया था वो बहुत अच्छा किया, तभी आपको है कि उतना एक्सपीरियंस एग्जैक्टली आया और ये आया। एग्जैक्टली। हाँ, तो आपको भी कॉल पे जाना है, कॉल पे 2-3 रिजेक्शन होंगी, 2-3 चीज आप गलत करोगे, वो गलत करके सीखोगे। क्योंकि ऑब्वियसली। आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लो, जब तक नेट प्रैक्टिस जितनी मर्जी कर लो, मैच जब तक नहीं खेलोगे चीज समझ नहीं आएगी। तो वो कॉल मैच है आपका, तो उसमें जाओगे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या लगता है, क्या कमी है। ओके। एड्स इंस्टा वाले चलाते हो या डायरेक्ट व्हाट्सएप वाला? आई थिंक ही इज ट्राइंग टू से कि कॉल टू एक्शन। नहीं नहीं, रिप्लाई। इंस्टा मतलब नहीं नहीं, ये कह रहा है कि डायरेक्ट इंस्टा प्रोफाइल विजिट करता हूँ, या फिर व्हाट्सएप पे, मतलब व्हाट्सएप का नंबर दे सकते हैं, ऐड पे क्लिक हाँ, करेंगे, वही मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप पे कॉल लैंड टू करेंगे। एक्शन। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो वो नहीं, मैं व्हाट्सएप पे नहीं करता, वही मैंने बताया इसका आंसर, कि व्हाट्सएप पे करने से ना सामने वाले बंदे को ट्रस्ट नहीं होगा। अगर वो मेरे प्रोफाइल विजिट करके आ रहा है तो उसको ट्रस्ट होता है, तो मैं डायरेक्ट प्रोफाइल विजिट करके करता हूँ। ओके। विकास भैया, आपने जून में 13 लाख कैसे किया भाई? वही तो एक एक घंटे से वही सेशन था ना। बस बिलीव यार, मैं एक चीज कहूंगा, बिलीव, पर्पस अपना लाइफ का पकड़ लो, पर्पस क्या है, मुझे करना क्यों है। बहुत लोगों को पर्पस ही नहीं पता, इसलिए नहीं कर पाते हैं। पर्पस ले लो, दूसरा हैबिट चेंज कर लो अपना अपना देखो कहाँ टाइम जा रहा है। मैंने सब चीज, मैंने मूवी वूवी सब चीज छोड़ना, देखना छोड़ दिया, कुछ नहीं। क्यों, मुझे पता है कि आज 2 महीने मूवी नहीं देखूंगा तो मेरा मरूंगा नहीं, मेरी लाइफ का कुछ भी इतना सा भी कुछ नुकसान होगा। बट आज मैं अगर 50 लाख कमा लूंगा तो मेरा बहुत जिंदगी बन जाएगी। तो यार और अपने हैबिट्स को चेंज मैं करो, हैबिट्स। जो जितने भी हमारे टॉप अर्नर्स हैं, जितने भी हमारे टॉप एफिलिएट्स हैं, वो लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग, हाँ ऑफ कोर्स वो लोग घूमने भी जाते हैं, वेकेशन में भी जाते हाँ हैं, हाँ बिल्कुल। ऑफिस का भी टूर भी हुआ था, अभी दुबई भी गए थे, घूमते भी है, लाइफ भी इंजॉय करते हैं। बट जो उनका काम करने का टाइम है ना, वो बहुत सीरियस होकर करते हैं। आप सोचोगे कि मैं हफ्ता में एब्सोल्युटली। 1 दिन काम करूं, 2 दिन काम करूं और आ जाएगा, तो नहीं होने वाला। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अभी बॉम्बे गया था कुछ दिन पहले, जो पवन से मिलने, राइट, जब पवन का 50 लाख अचीव हुआ था। हम्म। और वहां पे पवन था, और पवन के भाई थे, और एक और क्या नाम उनका,
देवराज 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 कोटवानी। देवराज भी आया था, एंड दे ऑल वर इन वेरी हरी, क्योंकि उस वक्त ऑफर चल रहा था, उस दिन ऑफर स्टार्ट हुआ था हमारा, तो वो लोग बहुत जल्दी में थे कि सर इसको जल्दी से रैप करके निकलना है, क्योंकि मतलब काम तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सच में मैंने देखा कि नॉर्मली ऑनलाइन, जब मैं भी ऑनलाइन बिजनेस करता था, कभी कभी मैं भी रिलैक्स हो जाता था, यस डेली काम कर रहा है, बट कभी कभी हो जाता है कि ऑनलाइन ही तो है, चलो आज नहीं करेंगे कल करेंगे, कभी कभी होता था मेरे से भी। बट मैं आप लोगों को और अपनी टीम को, जो भी टॉप अर्नर्स है, मैं देखता हूँ कि सही में आप लोग कितना सीरियस है और एवरीडे आप लोगों का कितना मेहनत है। तो बिना मेहनत का नहीं आता भाई, आप लोग को भी सीरियस होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी होगा। नहीं तो आराम से, मैं देखिए सबका प्रायोरिटी नहीं होता है कि मैं एक साल में 10 लाख कमाऊं। अगर Absolutely, that is point. अगर आप हैप्पी है 30,000 40,000 से, आपको इतना करने का जरूरत नहीं है। आप सीखिए, आराम से चिल मार के काम कीजिए, 40,000 10,000 का पर वीक कमाइए, 2 प्रो सेल कीजिएगा तो आपको 14-15 हजार ऐसे ही आ जाएगा, राइट। तो आराम से, तो सबका अपना अपना प्रायोरिटी है, लेकिन जो लोग टॉप कर रहे हैं ना, जो ऑर्डर, वो बहुत मेहनत करते हैं। डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट सेल्स? समबडी हैज आस्क्ड विकास सर की पहली अर्निंग कैसे हुई थी? हाँ बिल्कुल, वो चीज कौन भूलता है, वो तो बहुत प्रेशियस होती है। फर्स्ट सेल आई थी मेरी लगभग 10-15 दिन के बाद ही आई थी। वो मेरा स्कूल का फ्रेंड था, काफी दिन से मुझे झुंझुला रहा था करूंगा 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 करके। फिर फाइनली एक दिन कॉल करा कि भाई मुझे करना है। तो मैं सच बता रहा हूँ, उस दिन जब कॉल करा ना, मैं कॉल पे था, मेरी हार्ट रेट इतनी फास्ट थी ना, मतलब शायद वो उस समय हुई थी जब मैं वो वर्ल्ड कप देखा था, इंडिया श्रीलंका का। तब वो इंडिया मैच सचिन आउट हो गया था, तब हार्ट बीट फास्ट हो गई थी कि 2 विकेट गिर गए, सचिन भी आउट हो गया, सहवाग भी आउट हो गया। तो वैसा मेरा कॉल पे था, मेरा हार्ट बीट फास्ट हो रहा है, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इसके पहले 2-3 लोगों ने करूंगा करूंगा करके रजिस्टर करके फिर पेमेंट नहीं करा। रजिस्टर कर दिया, मुझे लगा कर देंगे, फिर पेमेंट नहीं करा, बाद में करूंगा, अच्छा पेमेंट भी करना पड़ेगा, ऐसा भी पूछते पेमेंट भी करना पड़ेगा। मैंने कहा "अरे यार, तुमसे 15 मिनट में कॉल पे रही तो पेमेंट करना पड़ेगा इनिशियली। तो फिर वो जब कॉल पेमेंट करा ना उसने, तो बोला हाँ पेमेंट हो गया। और फिर मैं देख रहा हूँ अपना इसमें रिफ्रेश मार रहा हूँ, फिर देखा 3000, उसमें 3000 रुपीज थी, 3000 रुपीज आ गई। मैं मतलब वो अलग ही था, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड था, इतनी खुशी तो फर्स्ट सेल की वो अलग ही रहती है, फर्स्ट सेल की खुशी। और मैं बता रहा हूँ, मेरे को उस समय भी डाउट था कि प्लेटफॉर्म लीगल है या नहीं है, कैसा है, मुझे डाउट था उस समय। जब जिस दिन मेरे अकाउंट में पैसे आ गए ना, तब जाके मुझे रिलैक्स हो कि नहीं, सब चीज जेन्युइन है, सब सेल चीज तो हो सही गया, है। पैसा अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं? हाँ अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा। और मेरे साथ एक गड़बड़ भी हुआ था, लाइक मेरी सेल शायद मंगलवार को हुई थी, और अगला दिन वेडनेसडे या थर्सडे था, पैसे आने वाले थे, बट मेरे अकाउंट में आया नहीं, हाँ, क्योंकि साइकिल है, मंडे टू नेक्स्ट वीक सैटरडे आएगा, हाँ। नेक्स्ट साइकिल में आती है। अब मैं बोला यार सबकी आगे मेरी आई नहीं, फिर मैंने आपको मेल वेल करा, तो फिर आपने बताया यार ये तो एक साइकिल है, आपका नेक्स्ट आएगा। तब मैं समझा अच्छा ये तो साइकिल है, जैसे 1 महीना हो गया तभी तो आएगा। तो मैं बोला अच्छा, फिर जब मैं वेट कर रहा हूँ, फिर एक उस दिन जब पैसे आए 3000 अकाउंट में, उस समय तो विदाउट TDS करके आती थी 3000, वो अलग ही खुशी है, वो 3000 रुपए, उसमें अलग खुशी थी। ओके सर, लीड्स पूछती है कि हमें काम क्या करना है। भाई ये एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है, ठीक है। सबसे पहली बात कि आप जो पैसा पे कर रहे हो वो ऑनलाइन कोर्सेज के लिए पे कर रहे हो, तो पैसा पे आप काम करने के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। वहां कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज है। हम लोग क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आपको बताना है। हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जहां इन कोर्सेज को हम एफिलिएट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? एफिलिएट मार्केटिंग एक ऑनलाइन बिजनेस होता है, जहां आप ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को, कोई भी जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है उसको आप प्रमोट करके आप पैसे कमा सकते हो। प्रमोट करने का मतलब यह है कि आपके प्रमोशन से जो सेल्स होगा, उस सेल्स का कमीशन आपको अर्निंग होगा। तो एंड ऑफ द डे यहां करना है सेल्स। ये सेल्स बिजनेस है, ऑनलाइन सेल्स बिजनेस है। जब आप सेल्स करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट आपका अपना नहीं है, यहाँ लीड सर का कोर्सेज है। बट एफिलिएट मार्केटिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट आप उठा के आप प्रमोट कर सकते हो। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहां से आप कोर्सेज लेके या कोई भी प्रोडक्ट लेके आप सेल कर सकते हो। दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। तो यहाँ हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करना है, यही आपको सिखाना है, यही आपको समझाना है आगे अपने लीड्स को। एग्जैक्टली, बट यहाँ पे आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, पूरी प्रोसेस तो भैया ने बता दिया। अगर ये चीज कोई आपसे वीडियो देखने से पहले पूछता है, तो आप बिल्कुल आप उसको एक चीज ही मैं बताऊं, मैं एकदम, सीधा ही बताऊंगा, आप सीधा वीडियो बोलो कि भैया वीडियो देख लो, हाँ। वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। वो कहेगा नहीं कॉल बता दो, उसको बता दो देखो भैया एक बात समझो, कि अगर मैं आपको ना बताऊंगा वर्बली तो मैं कुछ चीजें मिस करूंगा, आप भी कुछ चीज समझोगे नहीं समझोगे, इसीलिए तो हमने वीडियो बनाया है। छोटी सी वीडियो 20 मिनट की, यार 20 मिनट आपके करियर से ज्यादा बड़ा है क्या? ये दो तीन लाइन बोल दो ना, वो देख लेगा कि 20 मिनट आपसे करियर से ज्यादा बड़ी है क्या? आपकी करियर, आपके फ्यूचर का सवाल है, ड्रीम का सवाल है, तो आप 20 मिनट तो बोलता है हाँ निकाल लूंगा, ठीक है। और जो यहाँ पे सेल्स वाली चीज है ना, यहाँ पे जब भी आप उसको बता रहे हो, बताओ सेल्स वाली चीज है, उसको एक चीज क्लियर करो, क्योंकि सेल्स से ना माइंडसेट में यही आता है कि हमें घर घर जाके नॉक करना है, बेचना हाँ, है, या फिर 2 का ऑनलाइन है 4 ले लो। डिजिटल। ये हाँ, हाँ, उनको ये चीज क्लियर करो कि यार ये ऑनलाइन है, यहाँ पे ना ही आपको किसी के घर जाना है, ना ही आपको किसी को
सामने से पिच करना है कि ये चीज ले लो, वो चीज ले लो, ना ही कोई टारगेट है। यहाँ पे आपको घर में बैठना है, आराम से अपने फोन को इस्तेमाल करना है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना है और अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू करना है। वो सारी चीज आपको कोर्स में सिखा दी जाएगी, किस तरह आपको लीड जनरेट करना है, किस तरह आपको क्लोजिंग करना है, क्योंकि सेल्स का ना एक गंदा माइंडसेट है लोगों का। करेक्ट, सेल्स आपको मार्केटिंग और प्रमोशन पे फोकस करना है, सेल्स अपने आप होगा। आपको एग्जैक्टली, और मार्केटिंग वो एंड प्रमोशन पे फोकस करना है। और ये वो उनको मेंशन कर दो कि ये वो चीज नहीं है जो आप सोच रहे हो कि आपको घर घर जाना है या फिर आपको बाहर निकल के लोगों को अप्रोच करना है, क्योंकि हमने ये देखा है इंश्योरेंस वाले आके घर पे नॉक करते हैं, 10 बार कॉल करेंगे कि ले लो ले लो। तो हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है, ना ही अगर जितने लोग मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हैं या किसी के साथ स्टार्ट करें, तो आप चीज देखो, मैंने कभी किसी को, आप लोगों किसी को कॉल नहीं करा कि यार क्यों नहीं कर रहे हो, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। मेरा प्रोसेस चलता रहता है, आप खुद ब खुद मैसेज करते हो कि विकास सर मुझे आज स्टार्ट करना है, विकास सर मुझे कल स्टार्ट करना है, या फिर किसी के साथ भी आपने स्टार्ट करा हो, ठीक है। तो हम अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं, किसी को पीछे नहीं लग जाता कि भाई करो, चिंगम वाली चीजें नहीं करते हैं ना, आप दूर भाग रहे हो, हम पीछे लगे हुए हैं, क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो वाली चीजें नहीं करनी, उसको थोड़ा क्लियर करो कि सेल्स वाली जो आपके माइंडसेट में जो बनी हुई है इमेज, वो इमेज नहीं है यहाँ पर। ये हम टेक्नोलॉजी का यूज करके करते हैं घर बैठे बैठे आराम से अपने फोन का, बस। राइट, तो आई थिंक दैट्स इट। तो होप आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड होप सीखना तो है ही, सीखना तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। होप आपके मतलब जिस तरह से आप सोचते हैं, आपका जो सोच या आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आप डेली काम करते हैं, उसमें बहुत कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा, एंड दैट इज मेन थिंग। क्योंकि वो जब होगा तब सीख तो कहीं से भी लोगे। मेन चीज है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट उस माइंडसेट माइंडसेट है, हमारा प्रोसेस। उसमें वैल्यू ऐड होना चाहिए, एंड होप ये सेशन में बहुत हुआ होगा एंड आप लोगों को सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक्स विकास फॉर थैंक यू। sharing all your important and all your secrets and all the way you work, and definitely it was really very helpful, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला, and so great, thank you so much, and really feel proud to see you like growing from one sale to now doing 10 lakhs in a month, almost 14 lakhs in a month. So really feel proud. So superb. थैंक यू सो मच। Yeah, thank you, thanks a lot, thanks everyone, thanks for joining, and ये रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, तो जिसको भी जितना बार रेफर करना है आप कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो वो ऑडियो था जो विकास सर भेजते हैं अपने लीड्स को, वो भी रिकॉर्डिंग में होगा। तो क्योंकि पूरा का पूरा ऑडियो चला है तो वो होगा ही उसमें, तो आपको वहां से भी आपको सुनने को मिलेगा। वो बहुत एक कमेंट भी था बीच में अभी चैट में कि कैन वी गेट दैट ऑडियो। भाई कभी भी ना रेडीमेड, मतलब ये बात सोचो कि सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा। आप ये वीडियो देखिए, यहाँ से सीखिए कि विकास क्या बोल रहे हैं, और वो आप अपने से प्रैक्टिस करके अपना बनाइए। आप सोचोगे कि मुझे रेडीमेड वो मिल जाए और वही मैं किसी को शेयर कर दूं, या उसी को मैं बार सिर्फ उतना ही मैं बार बार सुनूं और बस उसको अपना बना लूं। तो डोंट ट्राई टू बी शॉर्ट, डोंट ट्राई टू डू शॉर्टकट्स, शॉर्टकट से कभी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप फोकस कीजिए इस वीडियो, ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में, आप उसको बार बार देखिए, ठीक है। और इससे आप लोग को डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वो ऑडियो नोट भी तो वहां है ही। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन, एंड विश यू ऑल वेरी ऑल द बेस्ट, टेक केयर।